everyone. Good evening, guys. I hope you all are doing well. So, a warm welcome to everyone in this Agentic Gen AI automation testing course. So, where we are going to cover TypeScript, Playwright, MCP test framework, GitHub Copilot, many more things. Basically, we are going to cover. So, today we have a first session. सभी का warm welcome है. Okay. Then let me go ahead with my introductions. As probably you might know, मेरे बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे. Let me introduce myself, guys. My name is Ganesh, and I'm your tutor and your mentor in this course. If you talked about my experience, I have almost now 14 years of experience in IT industry. I am currently working as an automation lead where I am defining the frameworks. I am working as an automation architect for the different projects. If you talked about my training experience, I have total 10 years of training experience as well in the IT industry. Like since 10 years, I'm giving training to the different companies, different institutes. Okay, apart from it, guys, I'm an official member of QA and Selenium Forum all over in Asia. And as you might know, I am a corporate training partner with TCS, Capgemini, Accenture, Infosys. These are the few companies basically I mentioned over here. And apart from it, I am giving training to the different institute as well. EduBridge, probably you might aware, CDAC, you might aware, CD Infotech, you might aware. This is what, guys, all over my introduction. And let's actually go about the automation. You can follow me on my official YouTube channel, which is named as Ganesh Jadhav Automation Studio. ये मेरा खुद का YouTube चैनल है जहाँ पे आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आप फाइंड आउट कर सकते हो. नो नीड टू वरी. So this is what, guys, I have to give my introductions to you. Let's talk about the syllabus. क्योंकि if you don't know about the syllabus, then probably it's really hard to understand everything. आज हम सारी चेक करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. Each and everything I'm going to tell you. No need to worry कि क्या है कोर्स, व्हाट इज द ड्यूरेशन, बेसिकली क्या कंटेंट हम कवर करने वाले, क्या नहीं करने वाले, एआई का क्या क्या पार्ट हम कवर करने वाले, एआई के टूल्स कौन कौन से कवर करने वाले, सर फ्यूचर इन आईटी इंडस्ट्री वो भी मैं बताऊंगा आपको. क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या पैकेजेस आपको मिल सकते हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें नहीं रिक्वायर्ड है, सारी चीजें हम गोना टेल यू गाइस. और जो मैं बताऊंगा, यू कैन जस्ट वैलिडेट एवरीथिंग विद चैट जीपीटी एंड व्हाटएवर एआई थिंग वी हैव दिस रिकॉर्डेड सेशन. आप शेयर आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग, मैनेजर जो भी है उनके साथ भी शेयर कर सकते हो. नो नीड टू वरी गाइस. ओके, so this is what exactly I want to tell you. So let's talk ITSO-Learn. So ITSO-Learn is an institute basically which is a subdivision of ITSO Services. So ITSO Services is a private limited company which has some product. ITSO Services working in the different area like product they are having. Then this corporation they are providing. Then multiple areas they are actually working with. So let's talk about the ITSO-Learn. So this is an official website of the ITSO-Learn. ओके, यहाँ से आप बेसिकली ओपन कर सकते हो. जल्द ही ITSO-Learn का मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड एंड iOS दोनों भी लॉन्च होने वाले हैं. अभी फिलहाल आप गूगल प्ले स्टोर पे ITSO-Learn का जो एप्लीकेशन है वो आप देख भी सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, बट अभी तक वो कंप्लीट नहीं है. तो प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में इसका रिलीज भी हो सकता है. This is what I got an information. Okay, let's talk about the syllabus. This is an official website of the ITSO-Learn. Let's talk about the syllabus. So if you talked about the syllabus, so this is the syllabus we have. Again, guys, I'm telling to you, इसके लिए कोई भी लॉगिन वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है. आप सिंपल ITSO-Learn की वेबसाइट ओपन कर सकते हो. एनीवेज आपको टीम के ब्राउचर्स वगैरह सारी चीजें मिल ही गई होगी. आई बिलीव ऑलरेडी आपका ITSO की टीम के साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो गया होगा कि अबाउट द सिलेबस, अबाउट द फीस एंड एवरीथिंग. बेसिकली यू माइट अवेयर. अगर नहीं पता होगा सिर्फ सिंपल मैसेज टू देम एंड जस्ट डिस्कस विद देम एज वेल. नो नीड टू वरी. तो यहाँ सिलेबस भी देख सकते हो. नो नीड टू वरी. अगर I'm clicking over here, you can see this is the entire course syllabus we have. तो करने वाले आपने कहा कि प्लेराइट ऑटोमेशन विद टाइपस्क्रिप्ट. अब टाइपस्क्रिप्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स को टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा मिस कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा मिस गाइडिंग, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग दे आर एक्चुअली हैविंग. अब क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, दैट पार्ट आल्सो आई एम गोना टेल यू. नो नीड टू वरी. तो लेट्स टॉक अबाउट टाइपस्क्रिप्ट. सर हम प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट why we are not learning the other language? सर क्या हमारा प्लेराइट सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है? आंसर इज नो गाइस. अगर मैं प्लेराइट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करता हूँ, जिस ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मैं
आपको यू ऑल कैन एबल टू सी हियर प्लेराइट सपोर्टेड फॉर Node.js, प्लेराइट इज सपोर्टेड फॉर पाइथन, प्लेराइट इज सपोर्टेड फॉर जावा, प्लेराइट इज सपोर्टेड फॉर डॉटनेट। तो आप नहीं काम करते, मतलब डॉटनेट के साथ क्यों नहीं करते, जावा के साथ क्यों नहीं करते, पाइथन के साथ क्यों नहीं करते, करने के लिए कर सकते हैं। वहां प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट शुड बी, क्योंकि गाइस प्लेराइट लिखा गया था ना वो टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर ही लिखा गया था। नाउ मेनी पीपल हैव अ कंफ्यूजन, सर आप टाइपस्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हो, सर कहाँ पे, वो तो लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। अब गई बात के प्लेराइट और टाइपस्क्रिप्ट बोथ आर द सेम लैंग्वेज। TypeScript is an advanced language we have, आपको JavaScript is an older language we have, legacy language we have, और ये दोनों लैंग्वेज को रन करने के लिए Node.js की रिक्वायर्ड है, इसलिए वहां पे Node.js मेंशन है, स्पेसिफिकली TypeScript वगैरह मेंशन नहीं है। पर तब फिर सर क्यों JavaScript नहीं, क्यों TypeScript से ओनली? अब गाइस ये तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जिन्होंने ये प्लेराइट टूल डेवलप किया है उन्होंने डिफाइन किया, ये मैंने नहीं डिफाइन किया। तो प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट ये सबसे ज्यादा सपोर्टिव कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली लैंग्वेजेस होता है, सबसे ज्यादा मतलब कॉम्बिनेशन ये यूज किया जाता है। सर तो मेरे क्वेश्चन सर, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टाइपस्क्रिप्ट एंड प्लेराइट, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट? द आंसर इज नो गाइस। इसके बारे में भी आई गिव यू द लाइव एग्जांपल्स टू ऑल ऑफ यू, नो नीड टू वरी, देयर इज अ नो डिफरेंस, सिंटैक्स वाइज आल्सो नो डिफरेंस। उल्टा टाइपिंग एडवांस फीचर्स में बहुत सारी चीजें एडवांस होती है, यहाँ पे क्या होती क्या नहीं होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। सर तो क्या हमें सच में प्लेराइट टाइपस्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए? सर क्यों नहीं? जावा सेलियम, जावा सेलियम को क्या हो गया सर? जावा सेलियम तो सिंस 2008 से हम यूज कर रहे हैं, तो अभी तो 2026 चल रहा है, ऑलमोस्ट इट्स बीन 18 इयर्स वी आर वर्किंग विद जावा सेलियम। सर क्या हो गया? व्हाट इज द प्रॉब्लम वी हैव? गाइस यू कांट इमेजिन कि आज की ड्यूरेशन में अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, अगर आपने भी, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्राई भी किया होगा, अगर आपको 10 कॉल्स आते हैं फॉर्मुलेटर, आउट ऑफ 10 10 एचआर कॉल, 5 कॉल दे आर आस्किंग अबाउट द टाइपस्क्रिप्ट विद प्लेराइट कंप्लीट, और जो बचे हुए 2-3 कॉल होते हैं, मतलब लगभग लगभग 7 to 8 कॉल दे आर आस्किंग अबाउट द प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट। सर तो व्हाट्स हैपनिंग गाइस? अगर ये एक ईयर जाता है हमारा, दिसंबर वगैरह जाता है, तो शायद नेक्स्ट ईयर से आपको जावा सेलियम के बारे में कोई नहीं पूछेगा। सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मतलब क्या दिक्कत है, व्हाट प्रॉब्लम वी हैव, क्या ऐसा चेंज हो गया? तो गाइस अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेट मी क्विकली ओपन, यहाँ पे मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ एनपीएम ट्रेंड। एनसीएम वगैरह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, नो नीड टू वरी, बट दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, नॉट फॉर प्लेराइट, नॉट फॉर टाइपस्क्रिप्ट। आपके जो भी जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट की जो भी डिपेंडेंसीज होती है आप यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कंपैरिजन होगी, ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है प्लेराइट की। आई एम गोना शोकेस टू यू द कंपैरिजन की 3 टूल के बारे में मैं कंपैरिजन आपको करके बताता हूँ, एक प्लेराइट के साथ, एक फाइब्रेस के बारे में आपने सुना होगा सेलेनियम के साथ। तो ये तीन वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है? ऐसा एप्लीकेशन जिसको हम इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इसको वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। हम हमें तो याद रखना है, भले ही आपका प्लेराइट हो, भले ही आपका साइप्रेस हो, भले ही आपका सेलेनियम हो, वो कभी भी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस को ऑटोमेट कभी भी नहीं करता, या कभी भी भूलना नहीं है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे कंपेरिजन करता हूँ, आप ही के सामने सेलेनियम वेब ड्राइवर ये पहला टूल मैंने पिकअप किया। दूसरा टूल आई एम पिकिंग अप जिसका नाम है वो गई साइप्रेस। ओके सर, तो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग साइप्रेस एज वेल? साइप्रेस में दिक्कत क्या है? साइप्रेस में एक ही प्रॉब्लम है कि ये जावास्क्रिप्ट के साथ यूज किया जाता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। दिस इज अगेन प्रॉब्लम हियर। और अगर मैं प्लेराइट को यहाँ पे यूज करता हूँ, प्लेराइट यू कैन सी, लेट मी शो यू द कंपैरिजन। मैंने एक कंपैरिजन किया लास्ट 1 ईयर का। अगर आप देखोगे तो ये जो रेशो आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन सी ब्लू कलर इज फॉर सेलेनियम वेब ड्राइवर, ऑरेंज कलर इज फॉर साइप्रेस, एंड ये जो ग्रीन कलर है दिस इज फॉर प्लेराइट। तो प्लेराइट 1 ईयर में इतने सारे लोगों ने अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए यूज किया गया है, मतलब जितने भी नए प्रोजेक्ट आज के ड्यूरेशन से डेवलप हुए हैं वो सारे के सारे प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट के लिए यूज किए गए। यू कैन सी दिस इज लाइव एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू। आने वाले समय में ये जो अभी भी मतलब डाउनग्रेड में जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट नाउअडेज कोई भी जावा विद सेलेनियम यूज करने के लिए रेडी नहीं है। सर क्यों नहीं रेडी है? अगर इसके पीछे बहुत सारे ड्रॉबैक है, बहुत सारी हिस्ट्री है,
आज तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, आने वाले सेशन में आई डिस्कस एवरीथिंग, नो नीड टू वरी। बट इतना ही समझना है, जावा विद Selenium में बहुत ही लाइन ऑफ लिखना पड़ता है, बहुत लॉजिकली सोचना पड़ता है, आपको लॉजिक बहुत याद रखना पड़ता है, सिंटैक्स बहुत याद रखना पड़ता है। प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट में ऐसा कोई झंझट नहीं। नाउ मेनी पीपल हैव अ क्वेश्चन, सर हमें थोड़ा कोडिंग है ना, थोड़ा टफ जाता है सर, तो क्या हमें इन डेप्थ कोडिंग के बारे में जानना जरूरी है? अंदर ही नो गाइस, ये आपके लिए एक ब्यूटी है। अगर एक आपको एडवांटेज जो कि प्लेराइट टाइपस्क्रिप्ट के साथ आप जाते हो, तो आपको इन डेप्थ कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। नहीं, मैं अगर आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि आपका प्लेराइट टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कोड जनरेशन का भी काम करता है विदाउट एआई। बिना एआई यूज किए बिना वी कैन जस्ट यूज एआई। एआई के साथ अगर आप प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट के साथ जाते हो, तो आपकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बेसिकली आसान हो जाएगी। तो अगर मैं कहता हूं, अगर हम इस ग्राफ की तरफ प्रॉपरली देखते हैं, तो यू ऑल विल गेट टू नो कि आने वाले समय में दिवाली जाने तो शायद से दिसंबर वगैरह जाने तो यू ऑल विल गेट टू नो नॉट अ सिंगल कॉल यू विल गेट फ्रॉम जावा विद Selenium। यहाँ पे जो भी लोग हैं जो ऑलरेडी जावा विद Selenium पे काम कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 years, मार्क माई वर्ड, आने वाले समय में नॉट अ सिंगल कॉल यू विल गेट फॉर जावा विद Selenium। ऐसा सर, तो व्हाट अबाउट द लेगेसी प्रोजेक्ट जो 10, 15 years से वर्क हो रहे, नाउअडेज दोस प्रोजेक्ट्स आल्सो कन्वर्टिंग विद प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट। सर ऐसा क्या है यहाँ पे मैजिक, मतलब क्या यहाँ पे एडवांटेज है कि इतना सारा चेंज हो रहा है? अब भाई दिक्कत क्या है प्लेराइट, सॉरी जावा विद Selenium के साथ? दिक्कत इज वेरी सिंपल, प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। वहां पे आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, आपको लाइनअप को बहुत लिखना पड़ता है, लॉजिकली बहुत सारी चीजें मेंटेन रखनी पड़ती है, और इसीलिए हम जावा विद Selenium को आज के ड्यूरेशन में कंप्लीटली धीरे धीरे अवॉइड करते जा रहे हैं। ओके सर, तो व्हाट इज द टाइपस्क्रिप्ट वी हैव? तो सर टाइपस्क्रिप्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले? बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें पढ़ने वाले हम, नो नीड टू वरी। Now many people have a question, sir. I worked on the manual testing since 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. सर मैं मैनेजर पोजीशन पे हूँ सर, मैं डायरेक्टर पोजीशन पे हूँ सर, मैं वीपी पोजीशन पे हूँ सर, तो क्या मुझे प्लेराइट टाइप सीखने के लिए इज देयर एनी रिक्वायरमेंट फॉर C++, जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग, इवन जावा स्क्रिप्ट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है? द आंसर इज नो गाइस। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, मैं जो जो कह रहा हूँ यू कैन वैलिडेट विद एन एआई एज वेल, नो नीड टू वरी गाइस। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए तभी आप ये सीख सकते हो, ये तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं गई। टाइपस्क्रिप्ट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी आप हमेशा याद रखना है। तो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सर व्हाट इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट? अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, यू कैन सी दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट, ऑलवेज रिमेंबर। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सर ये टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज डेवलप किसने किया है? टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज डेवलप बाय दी माइक्रोसॉफ्ट। तो नाउ अभी आपको आइडिया आ गया होगा कि वाई प्लेराइट बाय डिफॉल्ट सपोर्ट फॉर टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि प्लेराइट डेवलप किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। टाइपस्क्रिप्ट किसकी लैंग्वेज है? माइक्रोसॉफ्ट की है, इसलिए उन्होंने बाय डिफॉल्ट सपोर्ट किया। और ये तो एक रीजन हो गया, दिस इज जस्ट एन मार्केटिंग थिंग, दिस इज जस्ट एन बिजनेस थिंग, बट आई एम टेलिंग टू यू पर्सनली, टाइपस्क्रिप्ट इज रियली रियली ब्यूटीफुल लैंग्वेज एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट एज वेल। जावास्क्रिप्ट में तो बहुत सारे लूप है, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, मैं वो भी बताऊंगा कि क्या क्या एडवांटेजेस थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा, नो नीड टू वरी। बट टाइपस्क्रिप्ट हैज एन बाय डिफॉल्ट सपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय द प्लेराइट, ऑलवेज रिमेंबर। सो दीज आर द थिंग वी हैव। तो टाइपस्क्रिप्ट में क्या क्या पढ़ने वाले? टाइपस्क्रिप्ट क्या है, बेसिकली इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सिंटैक्स से लेके कोड स्ट्रक्चर, टोकन्स क्या क्या होते हैं, कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आपके var लेट कॉन्स क्या क्या होते हैं, हमारे कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, सारे डेटा टाइप वी आर गोइंग टू लर्न। नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, वॉइड, एनीथिंग वी हैव, सारे डेटा टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे जो लूपिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी हम कवर करने वाले, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस होते हैं वो भी हम कवर करने वाले, और गाइस हमारा हर एक टॉपिक एआई के साथ भी कवर करने वाले। सर एआई में हम क्या क्या कवर करने वाले वो भी मैं बताऊंगा, नो नीड टू वरी। तो दीज आर द बेसिक टाइपस्क्रिप्ट्स वी आर गोइंग टू लर्न, देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडवांस टाइपस्क्रिप्ट एज वेल। ओके, नाउ यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हम एआई के साथ सारी चीजें मतलब यूज करने वाले हैं, तो फिर क्या हमें सच में नॉलेज होना जरूरी है, सच में पढ़ना जरूरी है? फॉर श्योर पढ़ना जरूरी है। आज नहीं पढ़ोगे तो कल आपको दिक्कत होगी, आप सभी को पता है, दैट इज व्हाई यू ऑल आर हियर एक्चुअली। ओके,
तो यस यू हैव टू लर्न एटलीस्ट कहाँ पे क्या कोड कॉपी करना है, कहाँ पे कौन सा कोड पेस्ट करना है, ये सारी चीजें जानने के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव अ नॉलेज। तो ये गाइस हम एडवांस कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले टाइपस्क्रिप्ट के, जैसे कि क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होते हैं। उसके बाद आपके जो उप्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन। उसके बाद आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद आपके जेनरिक क्या होते हैं, आपके मॉडल्स एंड नेमस्पेसेस क्या होते हैं, अनसिंक्रोनाइज्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्ट्रिंग क्लासेस क्या होता है और कलेक्शंस क्या होता है। और तो और हमारे हर टॉपिक जो होता है हम एआई के साथ भी कवर करने वाले। यहाँ पे साइड में डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, यू कैन जस्ट रेफर एज वेल, नो नीड वरी। तो हम टाइपस्क्रिप्ट जो है बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें पढ़ेंगे। मार्क माय वर्ड, जो जो चीजें आपको ऑटोमेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जो जो चीजें आपको मैनुअल टू ऑटोमेशन स्विचिंग के लिए रिक्वायर्ड है, जो जो चीजें आपको जावा विद सेलेनियम से लेके टाइपस्क्रिप्ट विद प्लेराइट में अगर आपको स्विच करना है, तो गाइस आपको ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। सर तो आई हैव लाइक आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, तो सच में प्लेराइट में टाइपस्क्रिप्ट वर्थ है, हमेशा याद रखना है गाइस। जावा सेलेनियम की तरफ अगर आप शायद से फोकस कर रहे होंगे और आप अगर सोच रहे होंगे, तो जावा सेलेनियम आज के डिस्कशन में लेगेसी प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, जो मेंटेनेंस है, जो भी कई सालों से काम कर रहा है। और आप सभी को पता है, आप सभी को यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, अगर एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कि लेगेसी प्रोजेक्ट्स ओल्ड प्रोजेक्ट को कभी भी ज्यादा बजट नहीं होता है। बजट हमेशा जो नए प्रोजेक्ट होते हैं उनके तरफ होता है। तो अगर नए प्रोजेक्ट्स को बजट होते हैं तो आपको सीटीसी वगैरह सारी चीजें अच्छी मिलती है। एंड गाइस आई एम टेलिंग यू द गुड न्यूज हियर, मतलब मैं बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जावा विद सेलेनियम जो है ना, बहुत सारे लोग बहुत सालों से वो काम कर रहे हैं वहां पे, लाइक 10 15 20 ईयर से काम कर, नॉट 20, 10 15 ईयर से पीपल आर वर्किंग। तो लोगों को बहुत इन डेप्थ नॉलेज आ गया है वहां पे। और जब कहीं आपका इंटरव्यू होता है, एक एक सवा सवा घंटे तक आपको खींचते हैं वहां पे, न जाने क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो छोड़ो जाने देते। बट गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लेराइट कब से लोग यूज करने लगे? अभी अभी तो 6 महीने 1 साल से तो यूज करने लगे लोग। ये 4 5 साल पुराना तो टूल है, ये जो प्लेराइट जो है इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 साढ़े 4 साल पहले इसका रिलीज किया गया था। और अभी 1 1.5 साल से लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करने लगे, क्योंकि कभी भी कोई भी मार्केट जो होता है ना, कोई भी नए टूल पे डायरेक्टली सडनली स्विच नहीं होता है। स्विच करने के लिए वैसे रिसोर्स होने चाहिए, सारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उनको पता तो होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, राइट। तो बेसिकली इसलिए अभी धीरे धीरे इंडस्ट्री स्विच हो रही है ओवर द प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट की तरफ। सो गाइस द थिंग इज, यहाँ पे इंटरव्यू जो होते हैं, जितना टफ आपका जावा प्ले में होते हैं उतना टफ यहाँ पे नहीं होते। दिस इज प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। लाइक आपको हार्डली जो इंटरव्यू होता है आपका 20 मिनट्स 25 मिनट्स, हार्डली उतना ही इंटरव्यू होता है, ज्यादा इंटरव्यू नहीं होता है। सो दिस इज प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो जैसे हमारा टाइपस्क्रिप्ट हमने पढ़ लिया, देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लेराइट विद यूआई एज वेल। तो प्लेराइट यूआई में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आर्किटेक्चर से लेके आपके ब्राउजर वेब्स क्या होते हैं, लोकेटर्स कौन कौन से होते हैं, वेब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वेब कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन क्या क्या होता है, लाइक ऑटो वेटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेट कॉस्ट सिलेक्टर्स क्या होते हैं, जो भी आपका सिंक्रोनाइजेशन से लेके ब्राउजर ऑप्शन से लेके फ्रेमिंग से लेके डायलॉग से लेके, मतलब अलर्ट्स वगैरह, अलर्ट्स को कैसे हैंडल करते, असर्शन कैसे यूज करते, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, वीडियो कैसे क्रिएट करते, ये सारे एड ऑन फीचर्स है गाइस। प्लेराइट इज अ रियली रियली एडवांस टूल्स पे हैव, क्योंकि जो प्रॉब्लम जो चीजें आपको कभी भी पॉसिबल नहीं है विद सेलेनियम, वो सारी चीजें यहाँ पे प्लेराइट विद टाइप्स के थ्रू आप अचीव कर सकते हो। और इसलिए इंडस्ट्री शिफ्टिंग गाइस इन दिस टेक्नोलॉजी। So this is what guys we are going to learn Playwright UI here in depth from scratch. अब लेट्स टॉक अबाउट द टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? जब भी हमें कभी भी कोई भी ऑटोमेशन करना होता है ना गाइस, वी हैव टू यूज एन टेस्टिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि टेस्टिंग फ्रेमवर्क आपको बताता है कि आपकी टेस्ट सच में कितनी फास्ट है, फेल है, रिपोर्ट जनरेशन, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या हम सिर्फ और सिर्फ प्लेराइट के साथ यूज करते हैं? आंसर इज नो गाइस, लेट मी एक्सप्लेन टू यू द थिंग्स इन डिटेल। अगर आप कभी भी कोई सेलेनियम यूज करते हो, लेट्स टॉक अबाउट इफ यू आर यूजिंग सेलेनियम, तो सेलेनियम अगर आप जावा के साथ यूज करते हो, लेट मी क्विकली राइट डाउन, सेलेनियम अगर आप जावा के साथ यूज करते हो, ओके, प्लस जावा, तो शायद से आपने सुना होगा आपको क्या यूज करना होता है, व्हाट एग्जैक्टली आप यूज, आपको यूज करना होता है टेस्टएनजी और कुकुम्बर, ये दो फ्रेमवर्क यूज करने होते हैं। ओके, व्हाट एग्जैक्टली आप यूज गए, कुकुम्बर और टेस्ट एनजी, यू हैव टू यूज टेस्ट एनजी, ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क आपको यूज करना होता है।
ओके, भले ही आप एपीआई ऑटोमेशन करो तो ये यूज करना था उसी तरह से, और जे यूनिट भी आप यूज कर सकते हो उसी तरह से। अगर आपको प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट के साथ अगर ऑटोमेशन करना है, लेट्स टॉक अबाउट द प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट। ओके, प्लेराइट, ओके, प्लस टाइपस्क्रिप्ट के साथ अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो गाइस आप सभी को शायद से पता होगा नहीं होगा, आपको बाय डिफॉल्ट विच फ्रेमवर्क वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज प्लेराइट टेस्ट फ्रेमवर्क। मतलब गाइस द पॉइंट इज हियर, आपको कोई भी अदर फ्रेमवर्क यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेराइट टाइपस्क्रिप्ट ने उनका खुद का ही एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है जिसको कहते हैं हम प्लेराइट टेस्ट फ्रेमवर्क। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, क्या आप कुकुम्बर के साथ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कुकुम्बर यूज कर सकते हैं। ओके सर, तो क्या हमें कुकुम्बर यूज करना चाहिए फ्रेमवर्क? प्लेराइट टेस्ट फ्रेमवर्क ही आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बट एनीवेज में दोनों चीजें हमारे क्लास के अंदर आई कवर, नो नीड टू वरी। प्लेराइट टेस्ट फ्रेमवर्क भी कवर करने वाला और कुकुम्बर भी कवर करने वाला। जैसा तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि प्लेराइट टेस्ट फ्रेमवर्क अगर हमने पढ़ लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? मैं आपको एक एडवांटेज बताता हूँ कि व्हाई इंडस्ट्री स्विचिंग ओवर द प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट। अगर आप यूआई ऑटोमेशन करते हो, लेट मी क्विकली डिफाइन, डोंट सेव, लेट मी क्विकली डिफाइन। अगर आपको यूआई ऑटोमेशन करना है तो गाइस आप सभी लोग क्या करते, पहले क्या करते थे, सेलेनियम यूज करते थे, सेलेनियम और जावा को यूज करते थे यूआई ऑटोमेशन के लिए। वही अगर आपको एपीआई ऑटोमेशन करना है, आप शायद, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, नो नीड टू वरी, हम क्या यूज करते थे गाइस, रेस्ट एश्योर्ड, ओके, प्लस जावा हम फ्रेमवर्क यूज करते थे। उसी तरह से अगर मुझे मोबाइल ऑटोमेशन करना है तो हम क्या यूज करते थे गाइस, वी हैव टू यूज एफटीएम। मतलब अगर हम सेलेनियम विथ जावा के साथ जाते हैं तो यहाँ पे यूआई के लिए हमें एक अलग टूल पढ़ना होगा, एपीआई के लिए फिर से अलग टूल पढ़ना होगा, और मोबाइल के लिए अलग टूल पढ़ना होगा। मतलब वेब, मोबाइल एंड एपीआई को अगर हमें ऑटोमेशन करना है, तीन अलग अलग टेक्नोलॉजी पढ़ना होगा। इसमें दिक्कत क्या होती थी गाइस, अगर आपके कंपनी में, अगर आपके प्लेट में सच में काम आता है, एक्सप्लोजर मिलता है, तभी तो आप सीखोगे। आपको अगर आपके प्लेट में काम मिलेगा ही नहीं तो आप सीखोगे कैसे ना, व्हेन यू विल गेट द थिंग, राइट? आपको वैसा जॉब जॉब भी मिलता है तो यूआई ऑटोमेशन के लिए जॉब मिलता है, एपीआई ऑटोमेशन का काम नहीं मिलता तो कैंडिडेट पढ़ ही नहीं पाता है, और पढ़ना भी जाता है तो 2 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। बट द ब्यूटी ऑफ प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट हियर, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। अगर आप प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हो यहाँ पे, मतलब प्लेराइट टेस्ट फ्रेमवर्क यूज करते हो, प्लेराइट टेस्ट फ्रेमवर्क अगर आप यूज करते हो गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको भले ही एपीआई करना हो, ओके लेट मी राइट डाउन द थिंग हियर, भले ही आपको क्या करना है, ओके जस्ट भले ही आपको यूआई ऑटोमेशन करना है, या आपको एपीआई ऑटोमेशन करना है, या मोबाइल वेब ऑटोमेशन करना है, ओके वेब ऑटोमेशन करना है, आपको कोई भी अदर टूल, कोई भी अदर लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। आपका प्लेराइट और टेक्स्ट फ्रेमवर्क इज इनफ टू हैंडल एवरीथिंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्लेराइट टेक्स्ट फ्रेमवर्क, और इसीलिए नाउअडेज एवरीवन इज स्विचिंग ऑन दिस टूल गाइड। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। तो आपका भले ही यूआई करना हो, भले ही आपको एसीआई करना हो, भले ही आपको मोबाइल वेब एप्लीकेशन करना हो, अगर आपको ये प्लेराइट टेक्स्ट फ्रेमवर्क अगर आपको आता है, आपको कोई भी अदर टूल सीखने की जरूरत है, आप आपके एप्लीकेशन में सारी चीजें प्लेराइट के थ्रू कर सकते हो। So there is a no need to require to learn the different technology, different tools, and that is why this is really popular. So basically, playwright text framework क्या होता है, किस तरह से डिस्क्राइब, like टेक्स्ट क्या होता है, डिस्क्राइब क्या होता है, आपके अलग अलग हुक्स क्या होते हैं, आपके फिक्चर्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या होता है, आपके पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे होते हैं, रिट्राइज कैसे होते हैं, वर्कर्स कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं, टेस्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। और हाँ गाइस, हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग अप्रोच ही पढ़ेंगे। द डेटा ड्रिवन टेस्टिंग अप्रोच वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग। जेसन्स के थ्रू डेटा कैसे हैंडल करते हैं, हम सीएसवी फाइल के थ्रू डेटा कैसे हैंडल करते हैं, एक्सेल फाइल के थ्रू डेटा कैसे हैंडल करते हैं, डेटा हैंडल करते हैं, सारे अप्रोच वी आर गोइंग टू लर्न। अपार्ट फ्रॉम इट गाइस, हम सारी चीजें हम कैसे पढ़ेंगे, स्टेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, रीयूजेबल मेथड कैसे करते हैं, स्टेज कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमारा प्लेराइट टेक्स्ट फ्रेमवर्क ए के साथ कैसे यूज करते हैं वो भी हम इन डिटेल पढ़ने वाले। तो इस तरह से प्लेराइट टेक्स्ट फ्रेमवर्क हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एपीआई टेस्टिंग। सर तो यूआई टेस्टिंग के साथ एपीआई टेस्टिंग पढ़ना मैंडेटरी है? यहाँ पे प्रोबेबली सभी लोग एक्सपीरियंस पीपल है, राइट?
आप सभी को पता है कि अगर आपको यूआई टेस्टिंग और एपीआई टेस्टिंग अगर दोनों अगर आपको आता है, यू विल बी डायमंड इन मार्केट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस, क्योंकि हर कोई पैकेज के लिए काम करता रहे। ओके, बिकॉज पैकेज मीन्स अ लॉट एक्चुअली आज की ड्यूरेशन में। तो अगर आपको पैकेज गेट करना है तो आपको यूआई टेस्टिंग और एपीआई टेस्टिंग आना ही चाहिए। ये सारी चीजें आपको रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग में ये सारी चीजें बेनिफिट होता है। और एनीवेज जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आपको प्ले राइट टेस्ट फ्रेमवर्क आता है तो आप एपीआई यूआई सब कुछ आप कर सकते हो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो फिर ये बेसिकली क्यों जरूरी होता है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू लर्न अबाउट द एपीआई? कि बिकॉज ऑफ दिस आप सभी को पता है आज की ड्यूरेशन में हर एप्लीकेशन में 3 लेयर्स होते हैं। व्हाट आर दो 3 लेयर्स गाइस? आपकी होती है यूआई लेयर होती है टॉप पे, मिडल लेयर होती है एपीआई लेयर होती है, और लास्ट में होता है डेटाबेस। तो दोनों 3 लेयर होती है। अब डेटाबेस टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, एज यू प्रोबेबली ऑलरेडी वर्किंग ओवर द मैनुअल टेस्टिंग। और मैनुअल टेस्टर तो आपको डेटाबेस तो पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो यू जस्ट ज्वाइन द मैनुअल टेस्टिंग कोर्स एज वेल। उसके बाद एपीआई जो होता है, एपीआई मैनुअल टेस्टिंग, एपीआई यूआई ऑटोमेशन टेस्टिंग, हम सारी चीजें हम कवर करने वाले। तो ये दोनों लेयर वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल। सो यस गाइस, एपीआई टेस्टिंग, तो एपीआई टेस्टिंग हम किसके थ्रू कवर करेंगे? हम पोस्टमैन and sorry, not PostgreSQL, Postman, and what guys, another tool we are going to learn, इसका नाम है Swagger UI। ये दोनों टूल हम कवर करेंगे कि ये दोनों टूल के थ्रू हम एपीआई टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न द थिंग इन डिटेल फ्रॉम स्क्रैच। तो एपीआई मैनुअल टेस्टिंग कैसे करते हैं, एपीआई मैनुअल टेस्टिंग और स्वैगर यूआई कैसे करते हैं, ये दोनों टूल हम कवर करने वाले। ये कवर करने के बाद ये वंस वी आर डन, नो नीड टू वरी, सारी चीजें हम कैसे कवर करेंगे, इंस्टॉलेशन से कैसे करते हैं, एपीआई टेस्टिंग क्या होता है, कड ऑपरेशंस क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होता है, सोप एपीआई क्या होता है, एचटीटीपी स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न हियर फ्रॉम स्क्रैच। अब जैसे हमारे और गाइस वन मोर थिंग, यहाँ पे लाइव प्रैक्टिस हम एपीआई टेस्टिंग प्रोजेक्ट पे भी हम करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर। तो जैसे हमारी एपीआई मैनुअल टेस्टिंग हो गया, एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग भी हम कवर करने वाले। तो देयर इज नो सेपरेट फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड ओवर हियर। जिस तरह से जावा विद सेलियम के साथ अगर हम करते थे, हमें रेस्ट एश्योर्ड फ्रेमवर्क पढ़ना जरूरी होता था, यहाँ पे अभी हमें कोई भी सेपरेट फ्रेमवर्क पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एपीआई ऑटोमेशन वी आर गोइंग टू लर्न, जैसे कि एपीआई फंडामेंटल्स क्या होता है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इसको ऑटोमेशन क्या होता है, रिक्वेस्ट बिल्डर क्या होता है, एपीआई रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एपीआई ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, रिस्पॉन्स वैलिडेशन क्या होता है, स्कीमा वैलिडेशन क्या होता है, एपीआई चेनिंग क्या होता है। गाइस आई एम गोना टेल यू द वेरी लेटेस्ट थिंग, कोई एपीआई को मॉक कैसे करते हैं, उस मॉकिंग एपीआई का ऑटोमेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले, ऑलवेज रिमेंबर। और तो और हम एपीआई का फ्रेमवर्क भी डिजाइन करेंगे, सर्विस लेयर क्या होती है, यूटिलिटी लेयर क्या होती है, टेस्ट डेटा लेयर क्या होती है। और तो और हम एपीआई टेस्टिंग, यहाँ पे कुछ रॉन्ग है, रेस्ट एश्योर्ड यहाँ पे मेंशन है, दिस इज रॉन्ग थिंग। तो यहाँ पे हम एपीआई ऑटोमेशन जो होता है वो भी हम कवर करेंगे। ये सारी चीजें होने के बाद देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द गिट। अब सर ये गिट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिट? गाइस आप सभी को पता है कि अगर इफ यू आर वर्किंग एज अ मैनुअल टेस्टर, हमें जीरा को यूज करना होता है। व्हाई वी आर यूजिंग द जीरा एक्चुअली? बिकॉज ऑफ गाइस अगर एक साथ मल्टीपल पीपल वर्किंग टुगेदर ऑन द वन ऑफ द प्रोजेक्ट, किसने क्या चेंजेस किए, किसने क्या चीजें डिलीट किया है, क्या नहीं किया है, ये सारी चीजें ट्रैकिंग करने के लिए हमें जीरा टूल मैनुअल टेस्टिंग के लिए रिकॉर्ड होता है, अदरवाइज हमारे पास तो कोई हिस्ट्री रहेगी ही नहीं। उसी तरह से अगर हम कोई भी डेवलपमेंट करते हैं या कोई ऑटोमेशन करते हैं, जब हम कभी भी कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, कोई ऑटोमेशन करते हैं, हमें गिट का नॉलेज होना जरूरी है। मतलब यहाँ पे जो जो कंपोनेंट मेंशन किया है कि सर यहाँ पे कुछ चीजें ऑप्शनल है, बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीजें आप सभी को आना ही चाहिए। तो ये कैसे हम गिट और गिटहब ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। गिट क्या होता है, हमारी डे टू डे कमांड्स क्या होती है, इंस्टॉलेशन ऑफ गिटहब क्या होता है, ओके, गिट बैकलिस्ट क्या होता है, गिट कमांड्स क्या होता है, उसके बाद गिट विद एआई कैसे यूज करते हैं। हम यहीं पे रुकेंगे नहीं, हम गिटहब पे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम ट्रैक पे पढ़ने वाले, हमेशा याद रखना है। ओके, तो गिटहब पे प्रोजेक्ट अपलोड से लेके आपकी जो डे टू डे कमांड होती है वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो जैसे हमारा गिट एंड गिटहब हो गया, देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जेंकिंस। Yes, Jenkins talks about the CI/CD pipeline. This is the official website of the Jenkins. Sir, why we are going to the Jenkins? Because of that, this is completely free open source tool we have. अगर आपने अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी आपने देखी, मतलब मैंने जो बताया आपको,
जितने भी टेक्नोलॉजी है, ऑल टेक्नोलॉजीज आर कंप्लीटली फ्री ओपन सोर्सेज, यू डोंट हैव टू पे सिंगल रुपीज while using this technology, always remember. तो yes guys, हम जेनकिंस भी हम पढ़ने वाले, बट मेनी पीपल हैव अ क्वेश्चन, सर जेनकिंस की जरूरत क्या है, क्या ये मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी, आपको पता ही होना चाहिए सर, बट ये जेनकिंस होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं? लेट मी क्विकली एक्सप्लेन टू यू गाइस। आई नो दैट कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता होगा, बट डोंट वरी, पता भी होगा, जस्ट लिसन गाइस कि एग्जैक्टली जेनकिंस की नीड क्या होती है। अब जब भी आज की ड्यूरेशन में, भले ही आपकी स्टार्टअप कंपनी है, भले ही आपकी मिड स्केल कंपनी है, भले ही आपकी एमएनसी कंपनी है, जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप होता है, डेवलप करने वाले कोई अलग लोग होते हैं, टेस्टिंग करने वाले अलग लोग होते हैं। टेस्टर मतलब हम लोग होते हैं जो कि कोड टेस्ट करते हैं, डेवलप करने वाले डेवलपर्स होते हैं। तो उनके लिए एक सेपरेट एनवायरनमेंट होता है जिसको हम कहते हैं डेव एनवायरनमेंट। मतलब जब भी हम कभी भी कोई भी आईटी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, वी हैव अ सेपरेट फ्रेमवर्क जिसका नाम होता है डेव एनवायरनमेंट होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ डेवलपर आर परफॉर्मिंग द डेवलपमेंट। उसके बाद टेस्टर्स के लिए बेसिकली वी हैव अ सेपरेट, ओके, टेस्टर्स के लिए क्या होता है, सेपरेट एनवायरनमेंट होता है क्यूए, जहां पे टेस्टर्स आर परफॉर्मिंग द टेस्टिंग। यहाँ पे कुछ लोग क्यूए कहते हैं, कुछ लोग स्टेजिंग कहते हैं, कुछ लोग यूएटी कहते हैं। अब ये डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नेम कैन डिफरेंशिएट, बट ये 3 स्टेजेस होते हैं। और थर्ड वाला जो होता है जिसको हम कहते हैं प्रोड सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर। अब देखिए आपका जो कोड जो होता है, कोड तो डेवलप तो यहाँ पे हो रहा है ना, तो हम यहाँ से यहाँ पे कोड डिप्लॉय करना होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका कोड जब डिप्लॉय करना होता है, कैसे करोगे गाइस? तो ये एनवायरमेंट से, वन एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट में अगर आपको कोड डिप्लॉय करना था, कौन करेगा, कैसे होता? वो सारी चीजें जेनकिंस में हैंडल की जाती है। तो यस गाइस, इसलिए हम जेनकिंस पढ़ने वाले, और जेनकिंस जानना जरूरी है, जेनकिंस आना जरूरी है। नाउ यू माइट हैव क्वेश्चन, सर तो ये जो डिप्लॉयमेंट वगैरह का है, ये हमारा काम होता है? नो गाइस, दिस इज वर्क यूजुअली डन बाय द डेवऑप्स इंजीनियर। तो फिर हमारा काम क्या होता है? तो गाइस ये जो हम जो कोड डिप्लॉयमेंट करते हैं फ्रॉम वन एनवायरमेंट टू अनदर एनवायरमेंट, इसको हम कहते हैं पाइपलाइन। आपने शायद से सुना होगा कॉन्सेप्ट पाइपलाइन। तो इस पाइपलाइन के थ्रू हम हमारी जो ऑटोमेशन टेस्ट केस है वो कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, मतलब गाइस हम काम नहीं करते हैं। एक बार अगर हमारा ऑटोमेशन हो गया, पाइपलाइन के थ्रू आर टेस्ट केस विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर, और रिजल्ट जो होंगे वो भी ऑटोमेटिकली होस्टेड होते हैं। दिस ऑल आर द बेनिफिट ऑफ द पाइपलाइन, और इसलिए वी हैव टू यूज द पाइपलाइन कॉन्सेप्ट। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जेनकिंस जानना जरूरी है। तो जेनकिंस में हम क्या क्या कवर करने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द जेनकिंस, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, जैसे कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, हमारा ईमेल टू जेनकिंस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं। इतना ही नहीं गाइस, हम जेनकिंस तो हमारा गिटहब जो होता है उसके साथ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कोई टेस्ट के साथ के एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट्स आपको किस तरह से पब्लिश होते हैं ओवर द ईमेल, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। और जेनकिंस विद एआई का यूज कैसे करते हैं वो भी हम कवर करेंगे। ये सब कुछ होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न? नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच। मेनी पीपल हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये लगभग आपका आफ्टर योर इंट्रोडक्शन एक सेकंड क्वेश्चन होता है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी अबाउट योर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क? तो गाइस हियर हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच से सीखेंगे, क्योंकि गाइस आपको कुछ तो आपका एक्सपीरियंस जस्टिफाई करना होगा ना, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आप आज की ड्यूरेशन में अगर आप बताते हो कि I have a manual testing of like 10 year of manual testing experience, और मैं अभी जस्ट सीखा हूं मैं, आप सभी को पता है, नो वन इज गोना शेड्यूल योर राउंड, कोई शॉर्टलिस्ट भी नहीं करेगा आपको रिज्यूम। आपको यही बताना होता है कि आपको यस यू हैव ऑटोमेशन टेस्टिंग एक्सपीरियंस। तो यस गाइस, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच सीखेंगे। मतलब जिस तरह से रियल प्रोजेक्ट पे हम ऑटोमेशन करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे और हम हमारा ऑटोमेशन परफॉर्म करेंगे, जहां पे डेटा ड्रिवन टेस्टिंग फ्रेमवर्क का कवर करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कवर करेंगे, पेज फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न हम करेंगे, हमारी डे टू डे एक्टिविटी क्या होती है, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क सेटअप कैसे करते हैं, सारी चीजें कवर करेंगे। और हाँ गाइस, हम एआई टूल्स भी हम कवर करेंगे। अब गाइस ये होने के बाद बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे, सर अभी तक आपने प्लेयर एमसीपी सर्वर के बारे में बात नहीं की। गाइस मैं उसके तरफ भी आता हूँ, प्लेराइट एमसीपी सर्वर। यस गाइस, आप सभी को पता है, जिनको पता नहीं होगा जस्ट लिसन गाइस, आज की ड्यूरेशन में आप सभी को ये सारी चीजें आनी चाहिए, प्लेराइट एमसीपी सर्वर आना ही चाहिए। सर तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब इसके एडवांटेज क्या होता है? ट्रस्ट ऑन मी गाइस, हमारा कोर्स का टाइटल भी है ना, एजेंटिक प्लेराइट जेन एआई।
जो एजेंटिक जेएनएआई प्लेराइट ऑटोमेशन टेस्टिंग कोर्स। तो एजेंटिक जेएनएआई मतलब क्या होता है, एजेंटिक क्या होता है गाइस? अगर हम नॉर्मल एआई का टूल कोई भी यूज करते हैं, जैसे गिटहब कोपायलट, जेमिनाई, चैटजीपीटी आपने यूज किया होगा, वो क्या करता है, जो आप प्रॉम्प्ट देते हो उसके बेसिस पे वो काम करता है। तो प्लेयर एमसीपी सर्वर हट के होता है, हम इसके एड ऑन आगे वाली चीजें पढ़ेंगे, मतलब हमारे एजेंट्स के थ्रू कैसे ऑटोमेशन करते, प्लेयर एमसीपी सर्वर कैसे एक्टिवेट करते, प्लेयर एमसीपी सर्वर को ट्रेन कैसे करते हैं। कैसे अपने आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेट कर देता है, बहुत सारी चीजें फिक्स कर देता है विदाउट योर प्रॉम्प्टिंग। तो हम प्लेयर एमसीपी सर्वर विथ CLI विथ जीटअप को पायलट चैट कैसे परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। इतना ही नहीं गई, जो हम एआई टूल हम कवर करने वाले, उस एआई टूल में बहुत सारी चीजें, एलएम क्या होता है, उसके बाद आपका रैग मॉडल क्या होता है, उसके बाद हाउ टू डू द प्रॉम्प्टिंग। मेनी पीपल हैव क्वेश्चन, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जो डे टू डे बेसिस पे प्रॉम्प्टिंग यूज करते हो दैट इज नॉट इनफ गाइस इन ऑटोमेशन, वो इनफ नहीं, वैसा नहीं करना होता। बहुत सारे कैंडिडेट को यही पता नहीं होता कि प्रॉम्प्टिंग करते कैसे। तो प्रॉम्प्टिंग का क्लॉज क्या होता है, प्रॉम्प्ट कैसे फॉर्म करते हैं। अगर इसके पहले, मतलब अगर ये अभी अगस्त चल रहा है, अगर आप 8 महीने पहले जाते, 8-10 महीने पहले जाते हैं और 1 साल पहले जाते थे, लगभग लगभग 90% एआई टूल आर कंप्लीटली फ्री। बट आज का ड्यूरेशन वैसा नहीं है, आज की कंडीशन वैसा नहीं है। 99% एआई टूल नाउ डेज इज कंप्लीटली पेड टूल भी है, मतलब दे आर यूजिंग द, लाइक उनके लिए अगर आपको यूज करना है यू हैव टू पे दी चार्जेस। तो इस कंपनी को आज के ड्यूरेशन में चार्जेस पे करना पड़ता है। तो आज के ड्यूरेशन में बहुत सारी कंपनी जो काम करती है, वो किस पे काम करती है, टोकन्स पे काम करती है। किस पे काम करती है, टोकन्स पे काम करती है। सर ये टोकन होता क्या है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, टोकन होता क्या है, एजेंटिक मोड क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी चीजें प्लेराइट विद एमसीपी सर्वर में हम कवर करेंगे। दिस इज एआई टूल विच इज बाय डिफॉल्ट डेवलप्ड बाय दी माइक्रोसॉफ्ट। तो सर एक कौन से कवर करने वाले, तो गाइस वी आर गोइंग टू लर्न कवर्ड अबाउट द एआई टूल जिसका नाम है गिटहब कोपायलट। वी आर गोइंग टू लर्न गिटहब कोपायलट हम पढ़ने वाले। उसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चैट जीपीटी भी हम कवर करने वाले। तो चैट जीपीटी तो हम डे टू डे बेसिस पे यूज करते गए, तो आपने जो यूज किया होगा दैट इज डिफरेंट थिंग, हम जो यूज करने वाले इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन दैट इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग। यहाँ पे प्रॉम्प्ट कैसे फॉर्म करते हैं, उसका यूज, वो प्रॉम्प्टिंग का यूज हम गिटहब कोपायलट में कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी व्हाट गाइस क्लीन। So clean tool also we are going to learn. This is again free open source tool भी आप पेड है आज के ड्यूरेशन में। तो ये प्लेराइट विद एमसीपी सर्वर के साथ कैसे यूज करते हैं वो भी हम कवर करेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू कवर दी कर्सर टूल एज वेल। ये 4 मेजर टूल जो इंडस्ट्री को आज के ड्यूरेशन में लीड करते हैं, ये चारों टूल हम एआई के साथ पढ़ने वाले। तो हम सिर्फ नॉर्मल एआई का यूज नहीं करेंगे, हम एजेंटिक जेएनएआई का यूज कैसे करते हैं, जो करंटली मार्केट में यूज किया जाता है वो भी पढ़ेंगे। अब भाई जब भी हम एजेंटिक एआई यूज करते हैं उससे अलग अलग प्लान्स होते हैं, कौन सा प्लान हमें यूज करना होता है, कौन सा नहीं यूज करना होता है, डॉम स्ट्रक्चर पे कैसे काम करते हैं, ऑटोमेशन पे कैसे काम करते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ नो वरी, इंटरव्यू में आपको कोई भी एआई यूज करने के लिए नहीं बोलेंगे, बट गाइस आपको 100% ये पक्का पूछा जाता है कि हाँ इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था, बट इंटरव्यू में ये पूछा था कि टोकन्स कैसे यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे फॉर्म करते हैं। क्योंकि आज के ड्यूरेशन में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एआई टूल नहीं यूज करती है, भले बैंक को कोई भी डोमेन का हो, हेल्थ केयर डोमेन हो, बैंक डोमेन हो, कोई मैकेनिकल बेस्ड डोमेन हो, हर कंपनी आज के ड्यूरेशन में एआई बेस्ड टूल यूज करती है और आपको ये पता होना ही चाहिए। देन ओनली देन यू कैन एबल टू स्विच योर करियर फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेशन। और अगर आप जावा सीएम थे तो प्लेराइट पे टेस्टिंग आप यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मेनी कैंडिडेट वांटेड इन गुड सीटीसी, अगर आपको सीटीसी एक्टर चाहिए तो ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। तो ये गाइस हम ये सारे एआई टूल हम कवर करेंगे, तो प्लेराइट एमसीपी सर्वर हम कवर करेंगे, और ये सब कुछ होने के बाद वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द मॉक इंटरव्यू एज वेल। आपके मॉक इंटरव्यूज भी रहेंगे। सो दिस इज व्हाट गाइस एंटायर कोर्स सिलेबस बेसिकली भी। सर ये कोर्स जो सिलेबस है इसमें ये देखो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट, प्लेराइट, एआई टूल्स, प्लेराइट टेस्ट फ्रेमवर्क, प्लेराइट एमसीपी सर्वर, एपीआई मैनुअल टेस्टिंग, एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग, जी जेनकिंस, कुकुम्बर, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, मॉक इंटरव्यू, सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके, देन सर इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा? दिस कोर्स ड्यूरेशन इज 2.5 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन। डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे हमारे सेशंस रहेंगे, सैटरडे टू संडे वी डोंट हैव अ सेशन।
हर दिन 1 आवर का सेशन रहेगा और टाइम इज अ फिक्स 9 PM to 10 PM, यही 1 आवर का जो अभी हमारा सेशन है वही पे हम कवर करेंगे। उसके बाद सर कोर्स के फीचर्स क्या रहेंगे? डेली बेसिस पे जैसे मैंने आपको कहा था कि डेली बेसिस पे 1 आवर का सेशन रहेगा, दैट विल बी मंडे टू फ्राइडे रहेगा। हमारा हर सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, आपको असेसमेंट एवरीडे रहेंगे, उसके बाद आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा, एवरीडे विल हैव अ रिवीजन। हमारे डेडिकेटेड रिवीजन सेशंस भी आपको अलोकेट किए जाएंगे बेस्ड ऑन द सैटरडे, बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस और कैंडिडेट क्वेरीज विल हैव। उसके बाद आपके मॉक इंटरव्यूज रहेंगे और हम लाइव वर्क ऑन द ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट, ये लाइव वर्क भी हम करेंगे। दिस इज व्हाट इज ऑल ओवर फीचर्स भी है। अब ये होने के बाद अगर आपको कुछ भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, जैसे कि वीडियो एक्सेस करना, कोई नोट्स एक्सेस करना, कोई फीस के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है, दिस इज द इट्सो लर्न टीम भी है। इसी के बेसिस पे आपको इसी नंबर पे आपको लिंक मिल रहा होगा, ब्राउचर्स मिला होगा, कॉल आया होगा, वॉट एवर थिंग है। तो दिस इज एचआर टीम भी है, वो मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, 10 AM to 7 PM पे वो काम करते हैं। ओके, सो प्लीज रीच आउट टू पीपल गाइज ओवर हियर। अब ये सब कुछ होने के बाद चलो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द टाइपस्क्रिप्ट। ओके, एग्जैक्टली टाइपस्क्रिप्ट एग्जैक्टली है तो है क्या, चलो देखते हैं। ओके, सो व्हाई इज दैट टाइपस्क्रिप्ट गाइस? इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि टाइपस्क्रिप्ट इज स्ट्रांगली टाइप ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय द माइक्रोसॉफ्ट। कभी भी भूलना नहीं है। अब जो बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है, जब तक आप ऑटोमेशन में हो ये सारी चीजें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ओके, तो प्लेराइट ये स्ट्रांगली टाइप है ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज मेंटेन बाय द माइक्रोसॉफ्ट। इट इज अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब ये सुपर सेट क्या है? हमेशा टाइपस्क्रिप्ट इज द टॉप ऑफ डेवलप ऑन द जावास्क्रिप्ट। ओके, तो देयर इज अ नो सेपरेट कॉन्सेप्ट, मतलब मेनी पीपल हैव हियर मिस कंफ्यूज, मार्केट में बहुत सारा मिस गाइड किया जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिस कंफ्यूजन होता है कि अरे हमें ऑटोमेशन जो है जावास्क्रिप्ट के साथ करना है। गाइस अगर आप सिंटैक्स देखोगे दोनों लैंग्वेज का एग्जैक्टली सेम सिंटैक्स है, देयर इज नो डिफरेंस इन सिंटैक्सेस। यू कैन चेक ओवर द एआई, चैट जीपीटी भी कर सकता है लाइव क्लास में, नो नीड टू वरी गाइस। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट इज एडवांस लैंग्वेज, इसलिए हम इसी के साथ यूज करेंगे और ये बाय डिफॉल्ट सपोर्ट डेवलप बाय दी माइक्रोसॉफ्ट फॉर द प्लेराइट। This is a TypeScript basically we have to use. So TypeScript added the static typing, other powerful feature like JavaScript, मतलब JavaScript में जो ऑटो टाइपिंग के कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, वो सारे ओवरकम हमने किए हैं, and that is why TypeScript basically we have to use. So then why TypeScript for Playwright? So official and first class support we have. अपार्ट फ्रॉम इट कंप्लीटली टाइपस्क्रिप्ट है जिसकी वजह से बहुत लेस इश्यूज होते हैं। स्मार्ट कोड सजेशन होता है, तो स्मार्ट कोड सजेशन मतलब अगर आप देखोगे यू कैन सी जैसे ना ऑफिशियल वेबसाइट भी आप ये देखो, ये ऑटो यू कैन सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, जैसे कि SCN मैंने टाइप किया है, ये देखो स्मार्ट कोड सजेशन भी आप यहाँ पे देखो, दिस आर द थिंग बेसिकली, और इसीलिए वी हैव टू लर्न। उसके बाद गुड फॉर रियल वर्ल्ड मॉडर्न प्रोजेक्ट्स, जो एरर होते हैं बड़ी अर्ली केसेस में हम कैच कर लेते हैं, बेटर कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, और इसीलिए हम प्ले टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं फॉर प्लेराइट। तो फिर अगर मुझे ऑप्शन करना है, क्या मुझे जानना जरूरी है? कभी भी भूलना नहीं, का जो नेवर एवर फॉरवर्ड, जब जब आपको कभी भी प्लेराइट पे ऑटोमेशन करना है, ये 3 चीज कभी भी भूलना नहीं रहेगा। आपको क्या करना है? तो अगर आपको प्लेराइट में ऑटोमेशन करना है टाइपस्क्रिप्ट, तो हमें सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखना है। टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है Node.js। डोंट वरी, Node.js क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन आपको टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इंस्टॉल करना है और उसके बाद ही VS कोड इंस्टॉल करना है, हमेशा याद रखना है। तो अगर मेरे सिस्टम में Node.js है या नहीं, अगर मुझे चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ node वर्जन, अगर मैं कमांड रन करता हूँ आपको क्लियरली मैसेज मिला, व्हाट मैसेज यू विल गेट कि एंड नोड इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग एज अ इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि मेरे सिस्टम पे नोड इंस्टॉल नहीं है। तो फिर नोड इंस्टॉल कैसे करते हैं? हाउ एग्जैक्टली वी कैन इंस्टॉल द Node.js, मैं वो भी बताऊंगा। बट सर ये इंस्टॉलेशन से पहले सर हमें ये तो बताओ कि Node.js होता क्या है, क्योंकि सर जब आपने प्लेराइट की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया था वहां पे भी तो सर ये Node.js मेंशन किया था, ये Node.js होता है तो क्या होता है? ओके, अगर जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि प्लेराइट में टाइपस्क्रिप्ट के इंटरव्यू बड़े फनी और बड़े इजी होते हैं, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, जो इंटरव्यूअर जो है वो भी उसमें नया है, उसको भी एक आध साल का हार्डली एक्सपीरियंस होगा, 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसको भी ज्यादा पता नहीं है।
एंड गाइस यू आर आल्सो न्यू। तो उसने ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, मतलब यू कांट इमेजिन गाइस, इतने बेसिक क्वेश्चन पीपल आर आस्किंग। तो यस, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ने पूछा था कि नोड जेएस क्या होता है। तो नोड जेएस क्या होता है, नोड जेएस is an open source cross-platform JavaScript runtime environment that allow JavaScript code to run outside the browser. जब जब आपको आपकी टेस्ट केस रन करनी है आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर, दैट टाइम Node.js भी आपको, मतलब अगर कोई कार में इंजन होता है, बोनेट के अंदर इंजन होता है ना, कोई टू व्हीलर के अंदर कोई इंजन होता है, उस इंजन के बिना कभी भी हम कोई चीज रन कर सकते, कोई कार आपकी रन कर सकते, बिल्कुल रन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमें प्लेराइट की टेस्ट केस रन करनी है, जावास्क्रिप्ट रन करना है, कोई टाइपस्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन करना है, उसके लिए नोड जेएस इज मैंडेटरी, क्योंकि नोड जेएस के अंदर आपके इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती है जो आपके प्रोग्राम रन करती हैं, और इसीलिए ये नोड जेएस इंस्टॉल करना जरूरी होता है, कभी भी भूलना नहीं है। तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि सर ये नोड जेएस क्या होता है, इंटरव्यूअर पीपल basically ask you the question, what is a Node.js? You have to tell them that Node.js is completely free, open source tool we have, which with the help of the Node.js we can able to run the JavaScript, TypeScript and Playwright code. इतना ही बताना है, which is fine. अब so it is built on Chrome V8 JavaScript engine. अब ये कोई पूछता नहीं है, to be very honest, पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही कमिट किया था कि we are going to learn everything from scratch. तो आपका जो Node.js है Chrome V8 JavaScript इंजन के साथ रन करता है। तो ये इंजन नोड हम यूज करते हैं। तो डू यू हैव एनी, मतलब कोई अदर एग्जांपल है? अब जो लोग जावा को जानते होंगे तो आपको पता है, जावा अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको रन करना होता है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन यू रिक्वायर्ड, उसी तरह से अगर हमें नोड जेएस कोई भी कोड रन करना होता है तो वी हैव टू यूज क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, वी हैव टू यूज। इसको और मैं बताऊंगा, नो नीड टू वरी, बट दिस इज व्हाट गाइस वी हैव टू डू। अब ये Node.js होने के बाद सर व्हाई Node.js इज इंपॉर्टेंट इन ऑटोमेशन टेस्टिंग, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि गाइस आपका भले ही प्लेराइट हो, भले ही साइप्रेस हो, और मेनी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क कंप्लीटली डिपेंड ऑन द Node.js एग्जीक्यूशन। कोई भी फ्रेमवर्क तो आपका Node.js के बेसिस पे डिपेंड होता है, और इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो Node.js आपको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, पैकेज मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है, CI/CD पाइपलाइन इंटीग्रेशन के लिए भी हेल्प करता है। विदाउट Node.js प्लेराइट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कैन नॉट बी रन। आप एक लाइन का भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते हो, हमेशा याद रखना है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? तो गाइस आप सभी को क्या करना है, यू हैव टू ओपन दी Node.js ऑफिशियल वेबसाइट। अब गाइस दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द Node.js। ये एक तरह से आपको वेबसाइट ओपन करनी है, ओके। उसके बाद गेट Node.js पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जैसे आते हो, आपको यहाँ पे इस डाउनलोडर पे क्लिक करना है। वेरी सिंपल स्टेप पे। आप अगर आपके पास मैकबुक है, एनीवेज ये ऑटोमेटिकली आपका जो मशीन की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है डिटेक्ट करता है। तो आप मैक ओएस इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। मेरे पास विंडोज है इसलिए विंडोज बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करा। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो ये बेसिकली इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा, और इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के बाद इस तरह से आपको फाइल दिखाई देगी। मेरे पास ऑलरेडी है, तो लेट मी डिलीट, और लेट मी डिलीट द ओल्डर वन। और गाइस यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू, आई हैव टू सिंपल डबल क्लिक ओवर हियर। अब मुझे क्या करना है, Node.js मैंने डाउनलोड किया, इसको मुझे इंस्टॉल करना है। ठीक है गाइस, मैंने क्या किया गाइस, Node.js डाउनलोड किया, मुझे इंस्टॉल करना है। ये देखो ये वेलकम विजार्ड आपकी ओपन हुई। यहाँ पे आपको सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, यहाँ पे भी क्लिक करना है आपको, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्ट करना है, इसको एज इट इज सिलेक्ट करना है। देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, ये भी एज इट इज करना है। मैंने अभी तक कोई भी अदर जगह पे क्लिक नहीं किया, अदर जगह पे चेंजेस नहीं किया है। सिंपल गाइस, अगेन आई हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, और नेक्स्ट पे यहाँ पे भी नेक्स्ट बटन क्लिक करना, और सिंपल गाइस वी हैव टू क्लिक ऑन द इंस्टॉल। और यहाँ पे देखो मेरा Node.js का यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है। अब जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम बेस्ड ऑन योर सिस्टम परफॉर्मेंस, लाइक 10, 15, 20 सेकंड्स के अंदर ये हो जाता है, 30 सेकंड के अंदर हो जाता है। अगर आपका सिस्टम लोड लेता है तो इट विल टेक लाइक 1 मिनट 2 मिनट्स बेसिकली ये लेगा, बट नॉट मोर देन दैट। अब जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हो, शायद से आपको एक विंडो नहीं दिखाई दे रही है, एक मैसेज आ रहा है कि डू यू वांट टू अलो दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। आप सभी को यस करना है।
ये शायद से अभी आपको ये विंडो नहीं दिखाई दे रही है, बट ये आपको एक पॉपअप आया है अभी मेरे मेरे स्क्रीन पे। मुझे सिर्फ यस बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे देखोगे मेरा इंस्टॉलेशन विल कंप्लीटेड विद इन एन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अब ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, अब व्हाट इज नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू, अब आपको चेक करना है व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू चेक कि मेरे सिस्टम पे सक्सेसफुली नोड जेएस इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो कैसे करेंगे गाइस? सिंपल गाइस, अगेन यू हैव टू ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। आपको सिस्टम रिस्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। ओके, आपको सिंपल एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना और यहाँ पे सिर्फ सेम कमांड टाइप करनी जो मैंने प्रीवियसली की थी, नोड स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, दिस कमांड वी हैव टू टाइप। और अगर मैं प्रेस एंटर करता हूं, अब मुझे वर्जन दिखाई देगा। यू कैन सी गाइस, ये देखो ये प्रीवियस विंडो है जो कि सेम कमांड है रैन, और जहां पे मुझे मिला था एरर मैसेज मिला था कि नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अभी वही सेम कमांड है रैन एंड यहाँ पे देखो गाइस मुझे वर्जन मिल रहा है। इट मींस मेरे सिस्टम पे भी नोड जेएस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव, नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। बाय द वे, ये जो सारी स्टेप्स है ये यहाँ पे भी डिफाइन की गई है, नो नीड टू वरी। आप इस पीपीटी को भी रेफर कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। एनीवे दिस इज रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डिंग को भी रेफर कर सकते हो। अब आपका तो नोड जेएस हो गया। मैंने आपको क्या कहा था, हमें तीन चीज रिक्वायर्ड होती है। पहला है नोड जेएस, दूसरा है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। फिर टाइपस्क्रिप्ट क्या है? ऑब्वियसली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमें सीखनी है उसको हमें इंस्टॉल करना है। फिर इसको इंस्टॉल करने के लिए जिस तरह से हमें नोड जेएस डाउनलोड करने की वैसे कुछ जरूरत होती है? आंसर इज नो गाइस। आई एम टेलिंग टू यू, इसका सेटअप बहुत इजी है, वेरी वेरी सिंपल थिंग वे। अब मुझे क्या करना है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर मुझे इंस्टॉल करना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे npm install -g टाइपस्क्रिप्ट ये कमांड रन करनी है। व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू गाइस? आई हैव टू रन दिस कमांड। व्हिच कमांड आई हैव टू रन? ये जो npm install -g टाइपस्क्रिप्ट ये कमांड मुझे रन करनी है। ओके तो npm क्या है, इंस्टॉल क्या है, -g क्या है, टाइपस्क्रिप्ट क्या है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। npm नोड पैकेज मॉड्यूल, इसको ये npm क्या होता है इसके बारे में भी इन डिटेल में आपको कल बताऊंगा, नो नीड टू वरी। मुझे इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉल करना है? टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है, इसलिए इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट। फिर हाइफन जी क्या है? हाइफन जी इट मीन गाइस ग्लोबल। तो जब जब आपको आपकी टाइपस्क्रिप्ट ग्लोबली इंस्टॉल करना होता है, दैट टाइम वी हैव टू यूज। फिर क्या हम हमारा टाइपस्क्रिप्ट विदाउट ग्लोबल थिंग वी कैन इंस्टॉल? आंसर इज यस। आप वैसा भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट इसमें दिक्कत होती है। अगर आपके मल्टीपल यूजर्स होते हैं तो एक यूजर दूसरे यूजर्स पे एक्सेस नहीं कर पाता है। ये प्रॉब्लम प्रोबेबली यू ऑल में फेस, और इसीलिए फॉर सेफर साइड हमें क्या करना होता है, ये हाइफन जी का यूज करना होता है। और अगर मैं कमांड रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस, अगर मैं कमांड रन करता हूँ, अब मेरा जो है टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप सभी को। यू कैन सी आपका टाइपस्क्रिप्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। योर टाइपस्क्रिप्ट इज बीइंग सक्सेसफुली इंस्टॉल। सर मेरा टाइपस्क्रिप्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? कुछ नहीं गए, आपको कमांड रन करनी है, TST हाइपन हाइपन वर्जन, ये कमांड रन करनी है और आपको टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन दिखाई देगा। इसके पहले अगर आप यही कमांड अगर आप रन करते थे तो आपको बेसिकली मैसेज आपको आता था कि TXT इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन योर सिस्टम, ये मैसेज आता था। बट अभी इंस्टॉल हो गया तो आपको वर्जन मिल जाएगा। ओके, मतलब ये वर्जन आ रहा है, इट मीन हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पे देखो आपको ऐसा मैसेज मिलेगा, TXT इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये एरर मिलेगा, हमेशा याद रखना। ओके, तो अगर ये एरर मिलता है इट मीन आपका टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम पे, ये हमेशा याद रखना है। अब ये सब कुछ होने के बाद लेट्स टॉक अबाउट द VS कोड। अब हमारी दो चीज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई, कॉन्फ़िगर हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि VS कोड को इंस्टॉल कैसे करते हैं। Guys, I'm telling to you, VS Code is really, lot of advantage of the VS Code है, बहुत easier thing है। अगर आपको कभी भी AI का यूज करना है, तो जिस तरह से AI आपके VS कोड के साथ काम करता है, अदर टूल के साथ नहीं करता है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग टूल्स है। जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट के साथ अगर आप करते हो तो VS कोड भी हैव टू यूज, बट वही जावा के साथ अगर आप ऑटोमेशन करते हो तो इंटेलिजेंट आइडिया की हैव टू यूज। पाइथन के साथ अगर आप यूज करते हो तो पाइटेस्ट फ्रेमवर्क की हैव टू यूज। अब पाइथन टूल बेसिकली आपको यूज करना होता है। डॉटनेट के साथ यूज करते हो तो उसके लिए अलग टूल यूज करना होता है। बट जितना AI हमारे VS कोड के साथ अच्छे से काम करता है उतना अदर टूल के साथ नहीं करता है।
तो ये गाइस हमें क्या करना होता है, VS कोड भी इंस्टॉल करना है। फिर VS कोड को इंस्टॉल कैसे करते हैं? तो लेट मी टेल यू अबाउट द VS कोड गाइस। VS Code, commonly called the VS Code, is completely free, light-weighted, and powerful source code editor developed by the Microsoft. It is widely used by developers for building web, mobile, desktop, and cloud-based applications. So what are the features of the VS Code? जैसे मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इसमें बिल्ट इन इंटेलिजेंस है, इंटीग्रल टर्मिनल है, एक्सटेंशन मार्केट प्लेस है, गिट इंटीग्रेशन है, डिबगिंग सपोर्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म में। सर ये तो है फीचर्स सारे कौन सर गए? डोंट वरी गाइस, टुमारो आई टेल यू ऑल दिस फीचर्स जब हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो VS को इंस्टॉल कैसे करते हैं? कुछ मतलब देयर इज नो डिफिकल्टी ओवर हियर। सिंपल गाइस, यू हैव टू सर्च ओवर हियर VS कोड ऑन द सिस्टम। आपको जो पहली वेबसाइट गूगल सजेस्ट करेगा वहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास मेरा जो मशीन है वो विंडोज है, इसलिए उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। अगर आपके पास मैकबुक है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, अगर आपके पास लिनक्स है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। आपको सिंपल क्या करना है, डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करना और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जो है डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट है। सी वेरी सिंपल थिंग है। अब ये जैसे ही मेरा इंस्टॉल होता है, वंस आई एम डन विद एन डाउनलोडिंग, नॉट इंस्टॉल, डाउनलोडिंग होने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी था, तो लेट मी डिलीट ओल्डर वन। अब मुझे क्या करना है, इंस्टॉल करना। तो इंस्टॉल करना तो कैसे करेंगे? सिंपल गाइस, डबल क्लिक करना है वो जो VS कोड है। करने के बाद सिंपल गाइस फिर से एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। गाइस मैं जो बोल रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है? अगेन गाइस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, अगेन हियर एज वेल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ये ऐड टू पाथ एंड रजिस्टर्ड कोड एज अ एडिटर फॉर सपोर्ट फाइल टाइप, ये दोनों के दोनों एज इट इज चेक इन करना है। आप ये आपके ऊपर है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करना है या नहीं करना है आपके ऊपर है। ये दोनों भी ऑप्शन नहीं क्लिक किए कोई दिक्कत नहीं, बट ये दोनों ऑप्शन इट शुड बी मैंडेटरी। ये होने के बाद फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर से इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। मैंने कोई एक्स्ट्रा एक्शंस परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ नेक्स्ट 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 पे क्लिक किया है। फिर वो क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट का वही है, मैंने टिक बॉक्स पे क्लिक किया था, दैट इज ऑप्शनल है। और यहाँ पे देखो हमारा जो VS कोड है इट इज बिंग इंस्टॉलिंग। ओके, ये अगेन गाइस ये कितने जल्दी होता है? मेरे सिस्टम थोड़ा फास्ट है तो जल्दी हो जाता है। अगर आपका सिस्टम का कोई परफॉर्मेंस का इशू है तो इट विल टेक सम टाइम, 1 मिनट 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। सो बी पेशेंस व्हाइल इंस्टॉलिंग। जब भी इंस्टॉलेशन होगा थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है? अब ये होने के बाद सिंपल गाइस, यहाँ पे जब तक आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट का ये मैसेज नहीं आता तब तक प्रोसेस अबॉर्ट नहीं करनी है। और इस तरह से आपका VS कोड जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल होना है। अब इंस्टॉल होने के बाद जस्ट मिनट, ये मेरे प्रीवियस बैच का कुछ प्रोजेक्ट है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। कहाँ पे गया, कहाँ पे गया? क्लोज फोल्डर। ओके, तो इंस्टॉल होने के बाद आपको जो है इस तरह से VS कोड का जो है स्ट्रक्चर आप सभी को दिखाई देगा। आपको इस तरह से VS कोड का जो है आपको ये जो है स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब VS कोड में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से फाइल कैसे रन करते हैं, किस तरह से कोड रन करते हैं, कैसे हम पहली फाइल रन करके पहला स्टेटमेंट लिख के उसको रन करते हैं, वो सारी चीजें टुमारो आई विल कंटिन्यू बिकॉज वी आर रनिंग ओवर द टाइम। 1 मिनट ऑलरेडी हम लेट है, तो मैं हमारा सेशन यहीं पे स्टॉप करता हूँ एंड आई एम ओपनिंग द हाउस फॉर क्वेश्चन एंड आंसर गाइस। दोज पीपल हैविंग अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड गाइस वन बाय वन। Yes. Those people having question, please raise your hand guys one by one. Don't interrupt in between actually. Okay. Yes. शशि आपने सबसे पहले हैंड रेज किया, गो हेड शशि। हाँ सर, वो एक बार वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे क्या? उसका स्क्रीनशॉट लेना था एक्चुअली, मैं चेक कर रहा हूँ बट मेरे इसमें आ नहीं रहा। ओके, ओके थैंक यू। ओके ओके, यू कैन सी। ओके ओके। अगर गाइस अगर आपको कुछ, डोंट वरी, आराम से आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ दिक्कत भी होती है, नोट डाउन द ऑल क्वेश्चन, कल हम उसको इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, नो नीड टू वरी। यस जॉयदीप, गो हेड। जॉयदीप हेलो गो सर। हेड। हाँ हेलो। सर मुझे दो चीज का डाउट था। एक है कि आप लोग प्लेसमेंट में कैसे हेल्प करते हो, एक तो एक पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सर जैसे मान लो कोर्स खत्म हो गया, कोर्स खत्म होने के बाद भी हम लोग किसी कंपनी में गए, वहाँ पे भी हम लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आता ही रहता है। वो कोर्स खत्म होने के बाद भी हम लोग आप सपोर्ट करोगे? और प्लेसमेंट का कैसे करते हो आप लोग हेल्प?
उसमें थोड़ा बताइए। और तीसरा है कि इसका कोर्स फी वगैरह कितना है, वो भी थोड़ा बता दीजिए। ओके, चलो मैं आपको तीनों क्वेश्चन का वन बाय वन देता हूँ। पहले कोर्स का प्लेसमेंट का क्या रहता है, जैसे ही कोर्स आपका खत्म होता है आपके मॉक इंटरव्यूज वगैरह रहेंगे, आपको सारा प्रिपरेशन किया जाएगा, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच हो जाएगा। उसके बाद वी विल प्रोवाइड यू द कॉल्स फॉर दैट यू हैव टू अटेंड एन इंटरव्यू। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दिस इज व्हाट एन आंसर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपने कहा कि सर प्रोजेक्ट पे मिलने के बाद सपोर्ट का क्या होता है, अब वो तो like, अगर आपको कुछ दिक्कत होती है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, यू जस्ट टेस्टेड द थिंग, जो भी आपको दिक्कत होती है यू कैन जस्ट आस्क क्वेश्चंस टू मी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, देयर यू कैन आस्क द क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू देयर एज वेल, नो नीड टू वरी, और यू कैन कॉल मी एज वेल गाइस, नो नीड टू वरी। और आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि 2.5 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन वी आर हैविंग जॉइनिंग। ओके, यस, ग्रेट। हु इज नेक्स्ट गाइस, और किसको क्वेश्चन है? anyone is here guys? और सर मैं लास्ट क्वेश्चन था कि आपका कोर्स का फीस कितना रहेगा, वो मतलब वो तो शायद से 2.5 मंथ। आपको, आपने डिस्कशन नहीं किया क्या रिप्रेजेंटेटिव के साथ? हाँ वहाँ पे ठीक है मैं समझ गया। तो देन मैं कुछ नया थोड़ी ना बताने वाला हूँ। हाँ हाँ जयदीप, नहीं, फिर भी व्हाट डू यू मतलब थिंक? वेबिनार में जो डिस्कस करते हैं ना। ओके, यस शशि, गो अहेड। सर हेलो। हाँ यस। हाँ सर, एक्चुअली पता है कि ये बहुत कम टाइम में हम लोग ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आज जैसे मैंने किया तो थोड़ा सा मेरे को फास्ट लगा, तो हम लोग जैसे कल से आगे जब पढ़ेंगे तो मे बी थोड़ा सा स्लो रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, ये तो इंट्रोडक्शन सेशन है ना हमारा। हाँ 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 हाँ, इसीलिए हाँ, ओके यहाँ पे मैं सिलेबस थियोरेटिकल थोड़ा आज थोड़ा ज्यादा था, तो दैट इज व्हाई आई जस्ट स्पीड अप ओके द ओके थिंग। ओके, चलेगा चलेगा। वो तो मतलब हाँ हाँ, ठीक है, नो वरी ओके, शशि। थैंक यू। यस विश्वजीत, गो अहेड। विश्वजीत, यू आर टॉकिंग ऑन म्यूट प्रॉब्ली, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ हाँ जी, अभी आ रही है मेरी आवाज़ आपको? हाँ हाँ, गो अहेड गो अहेड, बताइए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था अराउंड गिट एंड हमारा फ्रेमवर्क। वेरी सो गुड, गुड क्वेश्चन। हम लोग कैसे इसको इस अप्रोच में जाने वाले हैं? मतलब जनरली होता है कि हम अगर कुछ सीख रहे हैं तो हम उसको अपने गिट पे रख सकते हैं, या फिर क्या अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं? और दूसरा है मेरा, इनिशियली हम लोग फ्रेमवर्क डिज़ाइन करेंगे वेरी या गुड, अप्रोच रहेगा? वेरी गुड। हर ट्रेनर को एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं कि कैंडिडेट्स शुड आस्क क्वेश्चन टेक्निकल थिंग। रियली प्राउड ऑन यू, तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू योर लाइक ऑल क्वेश्चंस वन बाय वन हियर। तो मैं आपके लिए, मैंने गिट ऑलरेडी ओपन किया है, एंड गिटअप दिस इज व्हाट आई एम गोना ओपन। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिस इज गिटअप वी हैव, जस्ट अ मिनट। तो हम हमारे डे टू डे बेसिस पे क्या क्या कमांड्स है हमारे ऑटोमेशन के लिए, वो हम पढ़ेंगे। हमारे कमांड्स के थ्रू जो भी कोड है पुश कैसे करते हैं यहाँ पे गिटअप पे, कैसे नहीं, वो भी पढ़ेंगे। यहाँ तक ही नहीं, गिटअप पे हम हमारी खुद की रेपो क्रिएट करेंगे। आपका अकाउंट भी यू हैव टू क्रिएट, आई टेल यू कि हाउ टू क्रिएट द अकाउंट, क्योंकि जो हम अकाउंट यहाँ पे गिटअप पे क्रिएट करने वाले हैं वही अकाउंट इट विल हेल्प यू टू यूज फॉर गिटअप को पायलट। तो गिटअप को पायलट का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके इंटीग्रेशन कैसे करना है, आपका गिट और गिटअप का दोनों का इंटीग्रेशन कैसे करना है, रेपो कैसे प्रोवाइड करना है, ये सारी चीजें आई टेल यू, नो नीड टू वरी। आपके जो सेकंड क्वेश्चन था कि सर क्या हम कोई ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच पढ़ने वाले, फॉर श्योर पढ़ने वाले, पढ़ना ही होगा हमें, क्योंकि वो आपका सेकंडरी क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, पूछते ही पूछते कि एक्सप्लेन मी अबाउट योर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। तो यार हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग अप्रोच कवर करने वाले, जहां पे वी आर गोइंग टू लर्न कि जेसन के थ्रू डेटा कैसे हैंडल करते हैं, एक्सेल फाइल के थ्रू डेटा कैसे हैंडल करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे डिफाइन करते हैं, पेज फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न कैसे डिफाइन करते हैं, फिक्चर्स कैसे डिफाइन करते हैं, हमारा फ्रेमवर्क किस तरह से स्प्लिटेड होता है, हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ कहाँ पे होती है, ये सारी चीजें हम क्रैश से कवर करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू सर। एक और मेरा क्वेश्चन था गो अहेड। कि जो हम लोग इंटरव्यू मॉक हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, तो क्या उसमें हमको सिर्फ टेक्निकल चीज़ों के बारे में ही मॉक इंटरव्यू होगा, या फिर हमारा कम्युनिकेशन लेवल भी वो चेक किया जाएगा हम लोगों को गुड उसका भी क्वेश्चन। कुछ?
देखा। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपकी चीजें टेक्निकल में जब आती है तो आपका कम्युनिकेशन चाहे उतना चेक नहीं किया जाता है। दिस इज एन रियल सिनेरियो आई एम टेलिंग टू यू इन द आईटी इंडस्ट्री। अगर आपका कम्युनिकेशन ओके ओके भी रहता है विच इज फाइन, बट अगर आपको टेक्निकल चीजें अच्छी होती है तो दैट वो चीजें निगलेक्ट की जाती है, क्योंकि हम जिस लेवल पे फिलहाल आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं और माई लेवल टू ऑटोमेशन में स्विच करना चाहते हैं, वहां पे हमें कम्युनिकेशन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। हमारा ओके ओके भी कम्युनिकेशन होता है, एटलीस्ट सामने वाले को क्या मैसेज कन्वे करना है, व्हाट मैसेज आई हैव टू कन्वे टू अदर पीपल। इफ यू नो सच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इनफ फॉर इंटरव्यूअर। तो आप जिस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे कम्युनिकेशन ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट हाँ जब हम मॉक इंटरव्यू लेते हैं तो इस चीज का भी टेक ओवर करते हैं, मतलब टेक केयर करते हैं। अगर आपको मॉक इंटरव्यू का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप इट्स सो लर्न का ही यूट्यूब चैनल देख सकते हो। वहां पे इट्स सो लर्न का ही आप यूट्यूब चैनल ही होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रॉब्ली यू ऑल विल गेट टू दो मॉक इंटरव्यू। यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए फ्यू इंटरव्यूज आई पर्सनली टुक, तो यहाँ पे आप रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस, ग्रेट। गो अहेड पायल, यू रेज योर हैंड। Hello, sir. I'm audible, na? वेरी गुड, लाइक यू आर क्रिस्टल क्लियर Actually, ऑडिबल sir, टू मी। मॉक इंटरव्यू के बारे में पूछ रही थी। लाइक मतलब पूरा कोर्स मतलब जब हो जाएगा तब हम लोग मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे और पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं, एक्चुअली पूरा कोर्स खत्म होने के बाद ही मॉक इंटरव्यू हम स्टार्ट करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ मॉक इंटरव्यू, कि जब आप रियल प्रोजेक्ट के लिए जाओगे ना इंटरव्यू देने के लिए, आपको ऐसा सरप्राइजेस नहीं मिलना चाहिए अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। मेनी पीपल हैव अ फियर कि डायरेक्टली, अरे बहुत सारे कैंडिडेट को इंटरव्यू अटेंड तक नहीं करते बिकॉज दे हैव अ फियर, अरे पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ ले। तो इसलिए आई विल गिव यू एन आइडिया कि एग्जैक्टली मॉक इंटरव्यूज कैसे होते हैं, क्योंकि जो मैं यहाँ पे मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, मैं कंडक्ट करूंगा, जो अदर जो ट्रेनर है वो भी कंडक्ट करेंगे। तो जब वो मॉक इंटरव्यू जब लिया जाएगा तो जिस तरह से हम यहाँ पे कंडक्ट करेंगे उसी तरह से लाइव एक्चुअली रियल कंपनीज में भी आपको यू मे गेट लेक्चर्स सेम ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आपका कोर्स खत्म होने के बाद ही मॉक इंटरव्यू होगा सर, रीजन बिहाइंड इट आपको एक्चुअली रियल एक्सपोजर मिले कि क्या है क्या नहीं। Okay, ओके, sir. ग्रेट, Yeah. गुड क्वेश्चन। अनिशा, गो अहेड। यस सर, अब इसमें हम डेटाबेस कनेक्टिविटी भी सीखेंगे प्लेराइट में। डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या हमें रिक्वायर्ड नहीं है ना, देयर इज नो रिक्वायर्ड टू लर्न द डेटाबेस कनेक्टिविटी बिकॉज दैट इज द मैनुअल टेस्टिंग पार्ट। इन केस अगर होती है तो कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Actually, to be very honest, there are 3-4 approaches to handle the test data in the automation framework. मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए गए जेसन, पीएसवी, एक्सेल और एक होता है डेटा एरे। तो जब भी हम कभी भी प्लेराइट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, ये तीनों में से कोई तो भी एक अप्रोच यूज किया जाता है। तो 99.90% केसेस में अनिशा हम जेसन वाला अप्रोच यूज करते, इवन हम एक्सेल वाला अप्रोच नहीं यूज करते। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है, एक्सेल वाला जो अप्रोच होता है ना उतना चाहे उतना इफेक्टिव नहीं है। जिस तरह से हम जावा क्लेन पे काम करते थे तो एक्सेल फाइल में हम डेटा स्टोर करते थे, विद द हेल्प ऑफ द अपाची एपीआई हम डेटा हैंडल करते थे, बट वहां पे बहुत सारे लूप होल होते थे। एक्सेल फाइल नल पॉइंटर बहुत बार देती थी, बहुत सारा इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होता था। तो इसीलिए आज की ड्यूरेशन में जो मॉडर्न फ्रेमवर्क डेवलप किए जाते हैं वो जेसन फाइल के थ्रू हैंडल किए जाते हैं, क्योंकि जेसन फाइल इज वेरी वेरी लाइट वेटेड। बहुत सारा सिंपल, लाइक एनीवन कैन एबल टू अंडरस्टैंड, जिसको कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज वाई 99.99% केसेस में जेसन फाइल का अप्रोच यूज किया जाता है। लेट मी टॉक अबाउट द डेटाबेस। अब डेटाबेस की दिक्कत क्या होती है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। कि अगर सपोज अगर हमारा कोई टेस्ट फ्रेमवर्क है, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्विकली क्लिक ऑन द न्यू। अब इमेजिन करो कि आपका ये जो है दिस इज द टेस्ट फ्रेमवर्क भी है। ओके, लेट मी, ये है आपका टेस्ट फ्रेमवर्क। और अगर हम कभी भी कोई भी अगर हम कभी भी कोई भी टेस्ट डेटा बेसिकली डिफाइन करने जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द डेटाबेस। ओके,
तो ये है आपका डेटाबेस। हमने डेटा कहाँ पे स्टोर किया है? यहाँ पे स्टोर किया है। जब हम यहाँ पे कनेक्टिविटी करते, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन आवर टेस्ट मेंबर टू डेटाबेस, इट विल टेक सम टाइम। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ये जो डेटाबेस है ना, ये कहीं पे तो भी होस्टेड करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होती है, सर्वर की कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज अगेन प्रॉब्लम वी हैव। थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर जो बंदी डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, टेस्ट डेटा इंसर्ट कर रहा है, अगर उसने ठीक से इंसर्ट नहीं किया ना, और सामने वाले बंदे को अगर डेटाबेस का नॉलेज नहीं है, तो वो हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए हम डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो है ना अप्रोच ऑलमोस्ट नहीं यूज करते, बिल्कुल नहीं यूज करते, 0.1% में भी नहीं आता है। तो देयर इज नो पॉइंट टू लर्न द डेटाबेस कनेक्टिविटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप वैलिडेट कर सकते हो मेरा आंसर, एआई पे नो नीड टू वरी। ना ठीक है, थैंक यू हाँ, सर। yes. एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं तो इसका स्टार्टिंग पैकेज क्या है सर मार्केट में अभी? गुड क्वेश्चन, रियली गुड क्वेश्चन। अब जो स्टार्टिंग पैकेज जो होता है ना अनिशा, वो हाँ, डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर करंट एक्सपीरियंस, और आपका करंट सिटी से क्या है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मैं आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेट देता हूँ कि अगर आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 3 years, 4 years, 5 years है, और आपका करंट सिटी सी 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिस्पेक्टिवली है, तो आपको उसके ऊपर आराम से 60, 70, 80% हाइक मिल जाता है। और अगर आप सच में प्रोफिशिएंसी हो तो आपको 100% पे हाइक मिल जाता है आज के ड्यूरेशन में। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसेंटली मिला है, तो नो नीड टू वरी। ओके, क्योंकि ये नए प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और आप सभी को पता है नए प्रोजेक्ट के लिए हमेशा बजट भी अच्छा होता है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस वाले प्रोजेक्ट में लो बजट होता है, तो सीधी सीधी उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन दी विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर गोइंग टू प्लेस, क्योंकि ऐसा ही फिक्स मिलेगा। ये तो प्राइवेट सेक्टर ना, मतलब दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे कि क्लास 1, क्लास 2 को ऐसा फिक्स सीटीसी गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड होता है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस है, उनको 15, 16, 70 का सीटीसी मिला है। अब दोज पीपल आर फ्रॉम बैकग्राउंड। वन ऑफ माय स्टूडेंट जिसका नाम है विवेक करके है, ही इज लोकेटेड इन बैंगलोर, तो उसको क्या 2.5 का या 3 ईयर का भी लगभग एक्सपीरियंस है, उसको 24 का सीटीसी मिला है। अब कुछ ऐसे भी मेरे स्टूडेंट के जिनको 3 ईयर का एक्सपीरियंस, जिनको 6, 7, 8 का सीटीसी मिला। तो ये कम्प्लीटली वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट और करंट सिटीज और आपके नॉलेज के बेसिस पर। ओके। तो फर्स्ट कुछ कॉल्स मतलब इंटरव्यू के कॉल्स आपके साइड से मिलेंगे सर हमें? यस, ओके, दैट्स गुड। शशि, आपने फिर से हैंड रेज किया है, गो अहेड। हाँ, सॉरी मुझे पूछना था। एक्चुअली मैं पिछले 6-7 साल से बैंकिंग डोमेन में हूँ, ओके, एज अ मैनुअल टेस्टर। तो बैंकिंग में फिलहाल तो ये सब यूज नहीं हो रहा है, जैसे टाइप ऑटोमेशन के लिए वो मैन्युअली ज्यादा हैंडल करते हैं। तो जब मैं कहीं अलग जगह पे इंटरव्यू दूंगा तो वो लोग शायद जज तो नहीं करेंगे कि बैंकिंग डोमेन में ये सब चीजें यूज नहीं होती है। और आप या मैं डोमेन स्विच कर सकता हूँ? गुड क्वेश्चन शशि। शशि, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको ना ही डोमेन स्विच करने की जरूरत है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आई एम नॉट श्योर कि आप कौन सी बैंक में काम करते हो, बट जितने में जानने वाले बैंक्स हो, जैसे बार्कलेस हो, सिटी बैंक हो, BNY मिलन हो, उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका हो, ऑलमोस्ट लगभग सारे बैंकिंग डोमेन की कंपनीज एआई का यूज करती है, ऑटोमेशन का यूज करते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन यूज किए बिना आज के रोज ऑप्शन ही नहीं है। कंपनी कितने एम्प्लॉय को हायर करेगी ना, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग का प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप 100 टेस्ट अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो, जिसको 1 मंथ इज रिक्वायर्ड, राइट, अगर उसका नया रिलीज आता है तो उसके फिर से नई 100 टेस्ट क्रिएट होती है। तो नए टोटल 200 टेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए आइदर भी आपको इंक्रीज द टाइम, नहीं तो हमें मैन पावर हायर करनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन हायर कितने लोगों को करेगी? इसलिए मैनुअल अप्रोच कभी भी कोई भी कंपनी को सुटेबल नहीं। और अगर कभी भी कोई कंपनी मैनुअल पे काम करती है तो उसका है ना डूबना तय है आज के ड्यूरेशन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऑटोमेशन को स्विच करना ही होगा। तीसरी बात, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, यू हैव टू टेल देम कि आई वर्क ऑन द 50% ऑफ मैनुअल एंड 50% ऑफ ऑटोमेशन इन माय करंट प्रोजेक्ट, दैट्स ऑल। ओके क्योंकि सामने वाले बंदा जो है वो आपको जज करेगा कि आपको ऑटोमेशन का नॉलेज है या नहीं, वो जज करेगा आपके आंसर्स के बेसिस पे। ओके, यस। हाँ, और एक चीज Go थी, ahead. सॉरी एक चीज थी कि एज कम्पेयर टू
जावा, ये टाइप स्क्रिप्ट कितना अलग है और कितना इजी है? ये बहुत इजी है एक्चुअली, और इसके जो सिंटैक्स है बहुत इजी और बहुत ऑप्टिमाइज कोड है। ओके जावा में दिक्कत क्या थी? सी हाँ आई एम गिविंग ट्रेनिंग ओवर द जावा सिंस लाइक ऑलमोस्ट 8-9 ईयर, मतलब 8-9 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा था जावा विद टाइपस्क्रिप्ट। यू हैव टू राइट डाउन द लेंदी कोड, छोटी छोटी चीजों के लिए भी लेंदी कोड यू हैव टू राइट डाउन। हाँ बट हाँ आपकी टाइपस्क्रिप्ट इज वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जहाँ पे एक दो दो तीन तीन लाइन में आपका काम हो जाता है। यहाँ पे ज्यादा लाइन ऑफ कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। जब आप धीरे धीरे हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, आपको खुद को रियलाइज होगा कि यार थैंक गॉड कि आई शिफ्टेड ओवर हियर, क्योंकि यार यहाँ पे ज्यादा लॉजिकल चीजें नहीं होती। ओके, थैंक यू। यस विश्वजीत, गो अहेड। हाँ यस सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये डीबी के पार्ट पे ही था। एक्चुअली हमारा जो अभी प्रोजेक्ट है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ उसमें डीबी इन्वॉल्वमेंट है हमारे ऑटोमेशन में भी, और हम फेच करते हैं डेटा, फिर वैलिडेट करते हैं हमारे एप्लीकेशन पे कि ये सिमिलर है या नहीं। सो इन फ्यूचर इन केस अगर मैं जिस टाइम पे स्विच करता हूँ या फिर कहीं पे भी जाता हूँ और इन ऐसा कुछ सिनेरियो आता है मेरे साथ में इसको लेकर के करने के लिए, उस टाइम पे कैसे अप्रोच को फॉलो करूंगा मैं? अब सी, let me explain to you actually. This is good question. I forgot your name actually. मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली होता क्या है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस में आपको सभी को पता है डेटा टेबल्स होते हैं। हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं? डेटा टेबल्स में स्टोर करते हैं। इन शॉर्ट, वी आर स्टोरिंग द डेटा इन अ रो एंड कॉलम। और आपके हर एक रो की क्या होती है? आपकी की होती है, मतलब आप रो एंड कॉलम्स, मतलब इन शॉर्ट रो और कॉलम के बेसिस पे डेटा स्टोर करते हैं। उसी तरह से जो हम जेसन का अप्रोच यूज करते हैं, जेसन में भी डेटा कैसे स्टोर करते हैं? एक फाइल होती है जहां पे आपकी की होती है और वहां पे आपकी वैल्यू होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंडेक्सिंग पे डेटा स्टोर करते हैं। तो द थिंग इज, द डेटा स्टोरिंग अप्रोच सेम फॉर एवरीवेयर, दोनों में सेम ही है, सिर्फ जो मीडियम है दैट इज अ डिफरेंट। तो अगर आपके केस में ऐसा आता है तो अगर आप डायरेक्टली जेसन का अप्रोच बताओगे, दैट इज इनफ एक्चुअली, दिस इज मोर देन इनफ। There is no need to tell you कि हाँ I have a knowledge कि the data like data in the database है, आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि to be very honest ऑलमोस्ट कंपनी जो होती है ना के बराबर डेटाबेस इंटीग्रेशन का पार्ट, मतलब डेटाबेस के साथ कोई फ्रेमवर्क डेवलप करती, डिजाइन करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। जी ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इवन आई वर्क अ लॉट ओवर द डेटाबेस कनेक्टिविटी। यहाँ पे डेटाबेस इंटीग्रेशन करो, वो डेटा लोड करो, ऊपर से वो डेटाबेस इंस्टॉल करो, कहीं पे होस्ट करो। अब कहीं पे होस्ट करना तो सर्वर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। बट अगर आप जेसन का अप्रोच यूज करते हैं तो बेसिकली आपका दिस इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड वे। और दिस इज इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल, कि आपको ये पूछा जाता है कि अगर सपोज अगर आपको कोई क्लाइंट ने बताया कि वी वांट टू डेवलप द ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, तो आप क्या अप्रोच यूज करोगे? तो अगर आपने ये वाला अप्रोच के साथ अगर आप बताते हो आंसर्स में, तो आपका इंटरव्यू में रिजेक्शन तय होता है, क्योंकि डेटाबेस अप्रोच इज ऑलवेज कॉस्ट, मतलब उसको ऑब्वियसली डेटाबेस इंस्टॉल करो, भले ही फ्री ओपन सोर्स होता है, पोस्टग्रेसक्यूएल वगैरह अदर डेटाबेस अगर आप यूज करते हो, उसको कहीं पे होस्ट करो। होस्ट अगर करते हो तो डॉकर की साइज बढ़ती है, सर्वर की साइज बढ़ती है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कम्स हियर। सो इसीलिए हम जेसन का अप्रोच ही आपको बताना है। ठीक है, जी प्रकाश, गो अहेड, यू रेज योर हैंड। यस सर। सर सेलेनियम और प्लेरेट में क्या डिफरेंस है, ज्यादा कैसे ज्यादा? बहुत डिफरेंस है एक्चुअली, ट्रस्ट ऑन मी प्रकाश, आप बिलीव नहीं करोगे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेलेनियम एंड प्लेराइट। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब सेलेनियम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है? सिंक्रोनाइजेशन। जहां पे उसका आर्किटेक्चर भी वैसा था सेलेनियम का, कि हम सबसे पहले कोड राइटिंग हम करते थे इक्लिप्स इंटेलिजाइडिया में, वो हिट करते थे पहले, जेसन वाइट प्रोटोकॉल को हिट करते थे, बट अभी W3C प्रोटोकॉल को हिट करते थे। और फिर हम ओवर द HTTP प्रोटोकॉल हम क्रोम ड्राइवर को क्लिक करता था, और फिर क्रोम ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंड करता था आपके ब्राउजर्स को। 3-4 लेयर होती थी। 3-4 लेयर की वजह से होता क्या था, वहां पे बहुत सारा सिंक्रोनाइजेशन का इशू होता था। उसके बाद आप ट्रेस ओवर नहीं कर पाते थे, हम चीजें डिबग नहीं कर पाते थे, ऑटो कोड जनरेशन फैसिलिटी नहीं थी, वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं था। देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज इन सेलेनियम। ये सारी चीजें हमने ओवरकम कर दी है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन द सेलेनियम आज की ड्यूरेशन में, बहुत सारे वेब एप्लीकेशन जो डेवलप्ड होते हैं
शैडो एलिमेंट्स में डेवलप होते हैं। आपने शायद से सुना होगा, देखा भी होगा, एक्सप्लोर भी किया होता है। Selenium is not capable to handle the shadow elements, but Playwright has some very advanced features जहाँ पे लोकेटर जो होते हैं, add-on locators explored by the Selenium, बहुत बहुत सारी चीजें, सॉरी नॉट Selenium, Playwright, बहुत सारी एडवांस चीजें जहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, अलर्ट हैंडलिंग, बहुत सारी चीजें, टेस्ट स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे इनबिल्ट टेस्ट फ्रेमवर्क से मतलब आपको कोई अदर टेस्ट फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी पे आपको मतलब आपकी डिपेंडेंसी डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। There's a many more features we have. Okay. सर Great. सेलेनियम भी हाँ, वो लाइब्रेरी यूज करके हम उसको हैंडल भी कर सकते हैं, बट उससे भी बेटर बोल के आप बोल रहे हैं प्लेरेट में। बहुत बहुत सारी चीजें, ठीक है बहुत। सर। देन ये और आप ये सिलेबस में कौन सा पार्ट फर्स्ट लेते हैं सर? आप आई मीन प्रोग्राम पार्ट ले रहे हैं क्या? फिर यूआई और एपीआई भी आप लोग कवर कर रहे हैं ना, सो द स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा प्रायोरिटी वाइज? ओके, गुड क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट में हम बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ टाइपस्क्रिप्ट, बेसिक टाइपस्क्रिप्ट, एडवांस टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेराइट हम पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेराइट टेस्ट फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। इस तरह से हम यूआई ऑटोमेशन कंप्लीट कवर करेंगे। उसके बाद एपीआई मैनुअल टेस्टिंग कवर करेंगे, एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग कवर करेंगे। इस तरह से एपीआई यूआई का कंप्लीटली पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम गिटहब की तरफ मूव करेंगे। अब ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फिर जेनकिंस करेंगे, क्योंकि जेनकिंस को पढ़ने के लिए हमें गिटहब पता होना जरूरी होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट करना होता है। और ये सब कुछ होने के बाद हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट करेंगे। इसके पहले हम पढ़ेंगे प्लेराइट एमसीपी सर्वर पढ़ेंगे, फिर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और हम यहाँ पे कुकुम्बर भी पढ़ने वाले, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो ये वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कुकुम्बर एज वेल। तो कुकुम्बर हम पढ़ेंगे, फिर हाँ, तो दिस इज द सीक्वेंस विल हैव। तो इसमें सीडी के बारे में जानते हैं सर? Yes, सीएससीडी go ahead, Joydeep, you no CID CD में how frequently tester are using that one? डेली बेसिस पे यूज करते हैं हम, क्योंकि जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे ऑफिस में, और अगर हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हमारा लैपटॉप ओपन करते हैं, एज एसडीटी एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो टेस्ट केस हमने ऑटोमेट की है वो जेनकिंस पाइपलाइन के थ्रू रन हुई है, उसने जो रिपोर्ट जनरेट किया है उसमें से कौन सी टेस्ट केस पास हुई, कितनी टेस्ट केस पास हुई, कितनी टेस्ट केस फेल हुई है, ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है। तो जेनकिंस हम डेली बेसिस पे एक्सप्लोर करते हैं। नाउ द अनदर पॉइंट इज, सर क्या जेनकिंस ने हमें इंडेप्थ जानना जरूरी है, इंडेप्थ काम करना जरूरी है? आंसर इज नो। हमें डेवऑप्स इंजीनियर के साथ काम करना होता है, बट पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, क्यूबी के साइड स्टेजिंग कैसे करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें क्यूबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट आई कवर्ड। हम स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के थ्रू कैसे हमारी टेस्ट केस रन करेंगे, कौन एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे we have to run the our test kits in the Jenkins, that everything we are going to learn. In short, जो QA की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो QA का काम होता है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। प्रकाश, थैंक यू सो मच सर। ओके, ग्रेट। जयदीप, आपने फिर से हैंड रेज किया, गो अहेड। हाँ जी सर। सर मैं पूछ रहा था, हम लोग डॉकर का भी यूज करेंगे क्या यहाँ पे? देयर इज नो रिक्वायर्ड फॉर डॉकर, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जेनकिंस आज के रोज में खुद एक डॉकर इमेजेस है। और जो हम लोग CI/CD पाइपलाइन यूज करेंगे, वो जो हम लोग जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे उसमें इंटीग्रेट उसी रहेगा को क्या? उसी को इंटीग्रेट करेंगे ना हम, उसमें नहीं इंटीग्रेट करेंगे, हम खुद इंटीग्रेट करेंगे ना, हम खुद बनाएंगे उसको हाँ, लाइव मैं वही क्लास में। पूछना चाह रहा था, जो हम लोग जेनकिंस का जो हम लोग यूज करेंगे ना, तो हाँ, मतलब वो जब खुद CI हम सारी चीजें ट्रैक से कवर करेंगे, मतलब खुद बनाएंगे। हमने जो प्रोजेक्ट डेवलप किया है ना, उसी को पाइपलाइन के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे। जो प्रोजेक्ट हम लोग जिसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे वो कौन सा डोमेन पे रहेगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑटोमेशन में डोमेन डजंट मैटर, क्योंकि नहीं, मैं भले ही पूछ रहा आपका हेल्थ केयर हूँ। डोमेन हो, भले ही आपका बैंकिंग डोमेन हो, भले ही आपका ई कॉमर्स डोमेन हो, इंश्योरेंस डोमेन हो, कोई डोमेन हो, सारे डोमेन को आपको प्लेराइट ऑटोमेशन को ही यूज करना है। सो वी आर गोइंग टू कवर द ई कॉमर्स प्रोजेक्ट डोमेन। अब ई कॉमर्स ही क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लोग उसी डोमेन के साथ फैमिलियर होते हो कि उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, क्या नहीं होते, और उसके बहुत सारे फ्री ओपन सोर्स एप्लीकेशन आर अवेलेबल। तो इसलिए वी आर गोइंग टू कवर अप द ई कॉमर्स। बैंकिंग डोमेन तो हम बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा तो कोई एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। और सर यहाँ पे
पाइथन का कुछ प्रोबेबिलिटी है क्या, मतलब सीखने का, या क्यों सीखना हमें पाइथन? व्हाट इज नीड ऑफ लर्न द पाइथन? क्यों जरूरत है हमें? अगर हमें टाइपस्क्रिप्ट आता है तो पाइथन क्यों सीखना है? ये ऑलरेडी बहुत कुछ है, फिर से पाइथन क्यों सीखना है? अगर हम इतना सीखते बैठेंगे। आप तो मतलब टाइपस्क्रिप्ट में सिखाओगे, but with my own interest, if I learn JavaScript also, because और इस that time suppose नहीं, आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो आप तो टाइपस्क्रिप्ट से सिखाओगे, with the टाइपस्क्रिप्ट आप सिखाओगे, लेकिन पैरेलली मैं अगर जावास्क्रिप्ट भी सीखता हूँ with my effort, so कहीं पे फंस जाता हूँ या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, that time you will be help me, right? और यो काइंड इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट। हम टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हैं मतलब जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। अच्छा अच्छा। सिंटैक्स वगैरह सेम ही है सभी का, सेम ही है। इसमें उल्टा एड ऑन फीचर्स है। टाइपस्क्रिप्ट में ना? हाँ, टाइपस्क्रिप्ट कोड वगैरह दोनों का सेम ही है। मैं इसका एग्जांपल आपको कल दूंगा एक, क्योंकि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट, वो भी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। तो आपको टाइपस्क्रिप्ट सेपरेट सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सॉरी जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट आता है, इट मींस बाय डिफॉल्ट आपको जावास्क्रिप्ट आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है सर। ग्रेट। और है किसी कोई डाउट पर क्वेश्चन है? Great. So what you can do, just install the thing. अगर कुछ doubt query question है while doing installation, please make a list of the question. We will meet on tomorrow on the same time with our new topic. Bye bye and take care. See you on tomorrow. Thank you. Yeah. Bye bye and take care.